Gee, I think we are live now, so we can formally start. And I just want to just give me one more second, please. Assalamu alaikum, everybody, and thank you so much for joining us again. This is going to be, I suppose, a series of different conversations because the Parliament has given us a lot of work and a lot of reasons to connect with each other, particularly on issues which I felt I had left way back in public law classes in my LLB degree. But it seems like I think when you're living in a country like Pakistan, then I guess it's a testing ground for all the concepts that we've done in jurisprudence and public law and constitutional law. And one of those very important concepts that we are going to be analyzing today is about parliamentary sovereignty. हमने देखा है कि हाल ही में जब से प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट आया है और अगर वो ऑथेंटिक है, जिसको 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी कहा जा रहा है, तो उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है और उसके पास तमाम इख्तियारात होते हैं किसी भी तरह की कानून साजी करने के लिए, किसी भी तरह की अमेंडमेंट पास करने के लिए। और जो इसके हामी है वो भी इसको इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जस्टिफाई कर रहे हैं कि पार्लियामेंट सॉवरेन है, सुप्रीम है और वो किसी भी तरह की कानून साजी कर सकती है। और जो इसके मुखालिफ आवाज़ें हैं वो ये कहती हैं कि इसके साथ साथ और भी कई ऐसे हमारे आईनी जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, वो मौजूद हैं, जिसमें से एक है जुडिशल इंडिपेंडेंस, फिर रूल ऑफ लॉ आ जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स आ जाता है। तो ये क्या, किस तरीके से ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपस में रिलेट करते हैं और इनका पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पे कितना अमल दखल रहता है, ये सारी कॉन्वर्सेशन करने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही इलस्ट्रियस पैनल मौजूद है। दे आर ऑल यंग लॉयर्स एंड मेरा स्ट्रेस हमेशा यंग लॉयर्स पे ज़्यादा होता है बिकॉज वी फील दैट 60% पॉपुलेशन हमारी अगर 30 की एज से कम है, तो that's the future and that's the kind of people we need to empower, because their voices matter and what they say comes from a lot of hard work, study, experience in their own fields in terms of, उनकी पूरी एक study और research है। तो just because they're young, we should not dispel those voices. It's very important to ensure that uh, you know, we have people who have some grounding in constitutional law। क्योंकि हम एक और भी चीज़ यहाँ पे करना चाह रहे हैं, हमारा क्योंकि जर्नलिज्म से ताल्लुक नहीं है, हम सारे वकील हैं और ये फोरम जनरली फ्यूचर लॉयर्स, लॉ स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स के लिए ही बात करता है ज़्यादा। तो हम चाहते हैं जो भी गुफ्तगू हो, जो भी कॉन्वर्सेशन यहाँ पे हो, वो इसके लीगल एस्पेक्ट्स के को उजागर करे। और हम इसकी पॉलिटिक्स तो ठीक है, एक चीज़ है कि ये इश्यूज पॉलिटिक्स के साथ इंटरट्वाइंड हैं, पर if we can come up with the legal arguments, the constitutional positions, the jurisprudence behind it, and the judgments, I think if we can have a conversation in that framework, that would be very helpful for the law students that we want to cater to and the young lawyers. So we have with us today Mr. Hassan Niazi. He's been practicing law since 2013, specializing in constitutional and regulatory disputes. He has served as a visiting faculty member at a number of law schools in Lahore, including at LUMS, where he taught jurisprudence. He's currently based in Singapore, where he's the lead regulatory counsel for the South and Central Asia region for Meta Platforms, advising on issues related to freedom of expression and the regulation of social media. He earned his LLM from New York University as a Hauser Global Scholar. We have with us Barrister Rida Hussain. She's also an advocate of the High Court and was part of the legal team that successfully represented one of the petitioners in the Supreme Court challenging the trial of civilians by military courts. She writes for Dawn, and she's also frequently quoted by Dawn, Al Jazeera, and the news on legal and constitutional matters. She's also a prominent member of Women in Law Initiative Pakistan, and I just had to add that. We also have with us Mr. Mirza Moiz Beg, a lawyer based in Karachi. He holds a Master's of Laws from Harvard, prior to which he obtained a bachelor's degree in law from LUMS. He has previously clerked at the Supreme Court of Pakistan and worked at the AG office, where he worked on cutting-edge constitutional issues. He also regularly contributes to leading daily newspapers and has also served in Sindh's cabinet as special assistant to the chief minister. All of you, welcome, and thank you so much that you're here with us on a Saturday evening.
But we could not have done this without you guys. So without further ado, I want to quickly dive into this concept. Hassan, starting with you, and then we'll move on to, obviously, if both of you want to add to what Hassan is saying, so feel free to pitch in and jump into the conversation whenever you guys want to say something. So हसन, आप जरा ये तो बताएं ना कि origin क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, कहाँ से आया ये, इसकी क्या हिस्ट्री और बैकग्राउंड है, और इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी. एंड ये अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, विल कम टू दैट. बट अगर आप इसको हमें जनरली अभी अंडरस्टैंड करने में, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने में जरा स्टार्ट कर दें, तो दैट वुड बी I think a good starting point. Over to you, Hassan. नहीं, thank you Nida. Once again thank you for inviting me and thank you for having these forums जहाँ हम ये discussion कर सकते हैं. It's a pleasure to be in the same panel as Rida and Moiz, both of whom I regularly read what they write. I regularly listen to when they have their comments with Dawn, and इनसे all of us learn a lot from them. So जनरली मैं ये कहूंगा कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट जिन लोगों ने अपना एलएलबी लंदन से किया है या यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रोग्राम से किया है, वो बहुत फेमिलियर होते हैं बिकॉज इट्स मोर और लेस द फर्स्ट कॉन्सेप्ट यू लर्न अबाउट इन योर पब्लिक लॉ क्लासेस. बट ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये यूके से यूनिकली क्यों ओरिजिनेट हुआ, एंड बाकी जो मुल्क हैं वहां इतना कॉमन क्यों नहीं है. सो यूके की जो समझने वाली बात है कि उसकी एक बहुत यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है, राइट. बहुत से मुल्क हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस ली थी और उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बनाने की कोशिश किए थे, या रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुई थी, उनके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स बन रहे थे. यूके में हुआ ये कि ऑब्वियसली बहुत लोगों को पता है कि क्राउन के पास पावर्स थी एंड क्राउन सॉवरेन था, राइट. यूके में डिस्प्यूट जब पैदा हुए थे वो क्राउन के दरमियान थे और पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान आना शुरू हो गए थे. जिस चीज को वो अपनी ग्लोरियस रेवोल्यूशन भी कहते हैं. इसके बाद बहुत ज्यादा ये हुआ था कि पार्लियामेंट जो थी वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, राइट, एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, एंड ऑफ कोर्स एज डेमोक्रेसी became a stronger force across the world. सो एक कॉन्सेप्ट आया कि जी पार्लियामेंट जो है, क्योंकि वो अवाम के मैंडेट उसके पास है एंड विल ऑफ द पीपल उसके पास है, तो वो सुप्रीम इदारा है. अब इसका मतलब बहुत फर्क हो सकता है डिफरेंट सिचुएशन में, अगर जनरली जिसको पॉइंट किया जाता है यूके में एज अ गुड समरी ऑफ द आइडिया, वो डाइसी के कॉन्सेप्ट को है. सो एवी डाइसी वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट, ही वाज अ लीगल स्कॉलर. उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि यूके के अंदर पार्लियामेंट से ज्यादा पावरफुल अदारा कोई नहीं है, और इसका मतलब है पार्लियामेंट जो मर्जी कानून बनाना चाहती है वो बना सकती है और कोई नहीं उन्हें रोक सकता, उस कानून को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता. जो भी कोई कंस्ट्रेंट है पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग पावर पे, वो पॉलिटिकल है, लीगल नहीं है. इसको समझने के लिए we have to contrast it then with the other system that is prominent in the world, which is actually the system most people are more familiar with, which is constitutionalism. Now, not to say कि UK is not a constitutional system. यूके की यूनिक बात यह है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, इन अ वे अनकोडिफाइड, बेहतर वे ऑफ कहना कि एक जगह में वो कलेक्टेड नहीं है, जिस तरह हमारा पाकिस्तान का आईन है, अमेरिका का आईन है. सो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको बहुत सारे स्टैट्यूट देखने पड़ते हैं, जुडिशियल डिसीजंस देखने पड़ते हैं. सबसे अहम चीज है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, जो कि अनरिटन रूल्स हैं ऑफ प्रैक्टिस, जिसपे सब सॉर्ट ऑफ इत्तेफाक करते हैं. ये सब कुछ जब मिलता है तो यूके की कॉन्स्टिट्यूशन बनती है. उसका प्रिंसिपल एक बना ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. ये प्रिंसिपल कहीं लिखा नहीं हुआ, किसी स्टैट्यूट में नहीं ये लिखा हुआ. ये प्रिंसिपल इंटायरली एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बनी between the different institutions in the UK. That means parliament, judges, the electorate, the executive,
ऑल सॉर्ट ऑफ कमिंग टू एन अंडरस्टैंडिंग कि हमारे मुल्क का निज़ाम जो है वो ये है कि भाई पार्लियामेंट सुप्रीम है। शुरुआत इससे होती है और फिर हम आगे आई मीन जाएंगे कि ये जी कॉन्सेप्ट अभी तक इसी तरह ही अंडरस्टैंड होता है। तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, कोई कानून किसी अगली पार्लियामेंट को नहीं पाबंद कर सकता, और पार्लियामेंट का कानून किसी अदालत में नहीं चैलेंज हो सकता। ये इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में अक्सर ये होता है कि एक मुल्क कहता है कि जी हमारे मुल्क का निजाम एक रूल्स पे चलेगा और उन रूल्स को हम एक जगह लिख रहे हैं। एक बार जब हमने उन रूल्स को लिख दिया है एक जगह, तो अब हम इन रूल्स के पाबंद हैं। पार्लियामेंट भी पाबंद है इन रूल्स के, एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहां पार्लियामेंट एक ऐसी खास अक्सरियत ले जिसके थ्रू वो इन रूल्स को अमेंड कर सकती है। मगर जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाते हो उसमें अक्सर कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक सुप्रेमेसी क्लॉज होता है। राइट, सो सुप्रेमेसी क्लॉज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत वाज़ेह है, जो कहता है कि जी बेसिक लेवल पे सारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस के सारे डिसीजंस जो हैं वो इस डॉक्यूमेंट के सबसर्विएंट है, वो इसके खिलाफ नहीं जा सकते। उसके लिए अक्सर फोरम बनाया जाता है जहां लोग चैलेंज कर सकते हैं और वो जुडिशरी होती है। मार्बरी अगेंस्ट मैडिसन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का एक बहुत बहुत अहम केस है अमेरिका का, जहां पे ये सारे फैक्टर्स डिस्कस होके अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में इख्तियार है कि हम एक लॉ को स्ट्राइक डाउन करें अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी के जो एग्जाम्पल मुल्क दिए जाते हैं, अच्छे एग्जाम्पल मैं कहूँगा यूनाइटेड किंगडम है जो इस बेसिस पे चला है। न्यूजीलैंड इज अनदर एग्जाम्पल जो इस बेसिस पे काफी चला है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तो बेशुमार एग्जाम्पल हैं। अमेरिका, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, लाइक the list goes on and on. So I'll stop there and let other people add on. But at a fundamental level, that is what these two concepts are about. हाँ, थैंक यू हसन, आपने बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस की भी बात की और जो फर्क है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के, जहाँ पे नहीं है कोडिफाइड इस तरह से लॉ, वहाँ पे ये प्रिंसिपल्स इस तरह से या कॉन्सेप्ट्स और रिटन नहीं है ये भी कहीं पे। लेकिन जहाँ आप कन्वेंशंस की बात करते हैं या आप पार्लियामेंट के बाउंड्स की या कंस्ट्रेंट्स की बात करते हैं, आपने कहा पॉलिटिकल है, लीगल नहीं है, तो वहीं ये कन्वेंशंस में इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंस्ट्रेंट है, तो अनलिमिटेड बाउंडलेस पावर तो तब भी एग्जिस्ट नहीं करती है, इवन इफ यू हैव एक्नॉलेज्ड parliamentary sovereignty as the supremacy clause, or as the institution that's going to be supreme. Even in that context they have some limitations or constraints, whether they are legal or social or political. So आप सिर्फ अगर briefly इस पे अगर कुछ comment add करना चाहें कि आपके ख्याल में जो पावर है या जो लिमिट्स टू द पावर है पार्लियामेंट, एक जहाँ जिस जगह पे पार्लियामेंट सॉवरेन भी है, तो इज इट एब्सोल्युटली सॉवरेन और देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स, एंड इफ सो वो कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं जहाँ से पार्लियामेंट के ऊपर आ सकते हैं? देखिए, जो एक तो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, राइट। सो पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट आपका ये है कि आपको पता है कुछ कानून आप बनाने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिकल सुसाइड होगी, राइट, आपका सिस्टम ब्रेक डाउन कर जाएगा। जब हम पब्लिक लॉ पढ़ा करते थे तो हमें अक्सर मिसाल दी जाती थी कि क्या पार्लियामेंट ये कानून बना सकती है कि तमाम ब्लू आइड बेबीज को मार दिया जाए, राइट। यही कहने वाली थी अभी, बिल्कुल आई वाज। और हम ऑब्वियसली कहते थे कि नहीं, अब क्यों पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाएगी, राइट। या आज का जो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि क्या पार्लियामेंट एक कानून बनाएगी जो कहेगी कि आज के बाद कभी इलेक्शन ही नहीं होंगे, राइट। सो एक तो ये पॉलिटिकल कंस्ट्रेंट्स हैं। कन्वेंशंस जो हैं, ऑब्वियसली कन्वेंशंस की मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि आई डोंट वांट टू गेट अहेड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, बट लीगली स्पीकिंग यूके की पार्लियामेंट में ने जब यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, अब लीगली स्पीकिंग तो वो कोई कानून बना सकती थी जो यूरोपियन यूनियन के कानून के खिलाफ जाए,
मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस बिकेम कंप्लीटली इम्पॉसिबल फॉर देम टू डू, क्योंकि जब ये सवाल यूरोपियन कोर्ट्स के सामने किया, उन्होंने तो फ्लैट आउट कह दिया कि ये नहीं हो सकता, आपका कानून हमारे कानून के साथ नहीं कॉन्फ्लिक्ट कर सकता। एंड जो मेरे पब्लिक लॉ के एक जमाने में स्टूडेंट्स होते थे, उन्हें मैं ट्रॉमा दे सकता हूँ एक केस के नाम बोल के, जिसका नाम था इंटरनेशनल हैंडल, जो ईयू का केस है। और एक और केस है कॉस्टा अगेंस्ट एनएल, वैन जेन एंड लूस, इफ एनीवन वांट्स टू लुक एट देम। सो कंस्ट्रेंट तो आ गया। अब आप जरूर कही जा सकते हैं कि जी नहीं नहीं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, मगर प्रैक्टिकल तौर पे आपको पता है कि अब अगर आपने एक निज़ाम चलाना है, अब आप ये कानून नहीं बना सकते अनलेस यू गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, जिसमें यू कट ऑफ फ्रॉम अ सिस्टम, राइट? सिमिलरली, जब फॉर एग्जाम्पल देर इज अ प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ डेवोल्यूशन के केसेस होते थे, राइट? सो लेट्स से कि आपने एक मुल्क को आज़ादी दे दी है, राइट? बिकॉज कलोनियलिज्म की वजह से ब्रिटेन हैड, अब क्या वो एक लॉ पास करके उस आज़ादी को वापस ले सकता है? पास तो कर सकता है, मगर क्या उसका कोई इफेक्ट होगा? नहीं, राइट? सो ये सारे कंस्ट्रेंट्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें। एक केसी वेयर का एक बड़ा अच्छा कोट है, ही वाज अ स्कॉलर, जो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है, आप अल्टीमेटली कह रहे हो कि हम एक गवर्नमेंट बना रहे हैं जो रूल्स के मुताबिक चलता है, आर्बिट्रेरी विम्स के मुताबिक नहीं चलता। ये फंडामेंटल बुनियाद है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, राइट? एंड इसके अराउंड सारी डिबेट होती है। कोई भी मुल्क, चाहे वो यूके है जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कहता है, या यूएस है जिसकी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अल्टीमेटली आप जब एक सिस्टम बनाते हो, आप कहते हो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, जिसका मतलब ये है कि हम सर्टेन रूल्स के मुताबिक चलेंगे, ये राइट? इवन पार्लियामेंट इन रूल्स के मुताबिक चलेगी। नहीं, I hear you, and I've also heard that essentially human rights considerations हो सकती हैं, political considerations हैं, revolution की आपने बात की, और यूरोपियन यूनियन का भी हवाला दिया। मैं यही सवाल थोड़ा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में मोइज आपके पास लेकर आना चाह रही हूँ। जो constraints अभी हसन ने मेंशन किए, उन्हीं को एट टाइम्स हम रिफॉर्मुलेट करते हैं इन लैंग्वेज सच एज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या कॉन्सेप्ट सच एज सेपरेशन ऑफ पावर्स है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं ला सकती है जो इन राइट्स को वापस ले रहा हो, और जो कि हमने देखा है कि इस ड्राफ्ट के अंदर कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं जो ये करने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के अंदर और एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ये कुछ और वैल्यूज भी बहुत एक फंडामेंटल स्टेट, या एक बिल्कुल जिसे हम कह सकते हैं कि इवन बिफोर पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एज अ कॉन्सेप्ट देयर आर कोर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स along with the concept of parliamentary sovereignty, तो इनका आपस में क्या इंटरेक्शन आपके ख्याल में है? और ये जो प्रिंसिपल्स हैं सारे, how can you reconcile with them when you have calls for parliamentary sovereignty on one side and independence of judiciary on the other? Moise, over to you. Thank you, Nida. First of all, Nida, thank you for having me on this panel. I could not have asked for better people to be on this panel with. I am a regular reader of Rida's columns, and I think Rida wrote a recent column about parliamentary sovereignty as well. And Hassan also, I've known for a long time. I've read Hassan's columns. In fact, Hassan, I've also had the pleasure of taking one of Hassan's classes in LAMS. So I could not have asked for a better panel. Now, Nita, जैसे कि आपने कहा, I think I am very clear on this that the concept of parliamentary sovereignty has no place within our jurisprudence and within has any place within our democratic and constitutional structure. और हमने देखा कि ये जो डाइसियन कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, आज जहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का वजूद था बरतानिया में, वहाँ भी उसकी उस तरह से एप्लीकेशन नहीं है कि जिस तरह से एक ज़माने में थी। आफ्टर द ह्यूमन राइट्स एक्ट, दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो हैज़ वेरी लिटिल रेलेवेंस इन द यूनाइटेड किंगडम नाउ. And we saw in 2015 in the District Bar Court, District Bar Rawalpindi case, Justice Jawad Khwaja spoke about decolonizing our judicial thinking as well. And he said that we could not uncritically apply these notions and these concepts which do not have any application in our jurisprudence in our country. अब अगर हम constraints की बात करें,
तो हमने देखा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर की, ये सेलिएंट फीचर्स की नोशन या ये कॉन्सेप्ट को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने मुतादिद मरतबा मुतादिद जजमेंट्स में अल्यूड किया है। हमने इन द 1990s महमूद अचकजई के केस में देखा, अर्ली 2000 में जफर अली शाह के केस में देखा, वकला महाज में देखा, एंड फाइनली 2015 में आके सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूसिवली इस बात को सेटल कर लिया कि पार्लियामेंट डज नॉट हैव द अनइनहिबिटेड राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आइन सुप्रीम है और तमाम इदारे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो पार्लियामान हो, तमाम ही इदारे पार्लियामेंट की तमाम ही इदारे उस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट हैं। तो क्योंकि पार्लियामेंट खुद एक मखलूक है कॉन्स्टिट्यूशन की, सो एज अ रिजल्ट द मखलूक डज नॉट हैव द राइट टू किल और डिफीट द खालिक। सो एज अ रिजल्ट जो बुनियादी ढांचा है हमारी आइन का, ये जो हमारी आइन का बेसिक स्ट्रक्चर या सेलिएंट फीचर्स हैं, उनको अमेंड नहीं कर सकते। जो आपने बात की इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की, जो आपने बात की सेलिएंट फीचर्स की, ये तमाम हमारी आइन की सेलिएंट फीचर्स का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। अब इसके ऊपर डिबेट हो सकती है कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं क्या नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जो प्रियम्बल है आइन का, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर और द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आपने एक्सप्रेस टेक्स्ट को देखना है आइन के और उससे आपने तलाश करना है कि सेलिएंट फीचर्स क्या हैं। लेकिन इस बात में सब अग्री करते हैं कि अगर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात की जाए, सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Now, this is not to suggest that the judiciary has not overstepped or has not rendered verdicts which can be questioned. So, for instance, you and I can challenge the judiciary's decision in the 63A judgment. We can question the court's interpretation. And there have been judgments where the court's interpretation of the Constitution engenders concerns about the consistency of those decisions with the Constitution itself. लेकिन उसका तरीका ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को भी मिसमार कर दें और आप उन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को भी, कि जिसमें मेरी और आपकी आज़ादी की गारंटीज हैं, उन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को भी इरोड करते हैं। सो अगर हम इस I don't want to jump ahead of the debate right now. So when we talk about the exact text of the amendment, then we can talk about how this amendment erodes the independence of the judiciary. लेकिन हमने कुछ बुनियादी अंडरस्टैंडिंग्स और बुनियादी assumptions के साथ रहते हुए डिस्कशन करनी होगी। सो हम जब भी किसी भी आईनी टेक्स्ट को देखेंगे, 3-4 चीजें गिवन है। यानी आईनी तरमीम कोई भी होगी, वो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को सर्व नहीं कर सकती, वो फंडामेंटल राइट्स को सर्व नहीं कर सकती, और वो किसी भी ऐसी चीज को ऊपर इंक्रोच नहीं कर सकती जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं असल में, क्योंकि आपने बात छेड़ ही दी अब बेसिक स्ट्रक्चर की और उसकी, तो मैं आई जस्ट पोज दिस राइट हियर। थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट भी मुझे प्ले करना पड़ रहा है, बिकॉज देर आर क्रिटिक्स ऑफ दीज पोजिशंस एज वेल, एंड I think it's for a fair debate, it's important that we put forward those perspectives also and see कि उसके ऊपर आप लोगों के क्या perspectives हैं। अब there's a lot of conversation about the basic structure doctrine itself, कि वो भी judges ने खुद ही बना लिया और फिर जजमेंट्स भी वो खुद ही देते हैं, तो वो कौन होते हैं? ऑल्सो दिस थिंग के वो अनइलेक्टेड हैं, तो हाउ कैन दे बी द फाइनल सॉर्ट ऑफ आर्बिटर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस? एंड सो एक तरह से एक डिस्क्रेडिट करने की भी मुहिम मैंने नोटिस किया कि चली हुई है, और किस तरह से जो हमारे लिए बड़े फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्रेट कॉन्सेप्ट्स हैं कि जजेस आर द फाइनल आर्बिटर्स एंड उनके पास ये है। बट आई थिंक इट्स नॉट very comfortable for people who haven't studied these principles and these concepts to understand why unelected people will all of a sudden sort of be more supreme than the parliament जिसको लोग elect करके लेकर आते हैं। So of course that does take us into a lot of other electoral debates as well, but उसको भी अगर हम साइड पे भी रखें, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे मोइस, कि वो जजेस को ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि who are they to be saying कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है, या saying कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इस तरह की हो सकती हैं और इस तरह की नहीं हो सकती। तो what would your response to that be? There are two arguments. One is that when the Supreme Court rendered its judgment in the District Bar Rawalpindi case, the federal government at that time, which also at that time comprised the PMLN, did not file any review. So उसके बाद ये डिबेट के बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं, इसलिए खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि आपने कोई रिव्यू नहीं फाइल किया था उसका। So in the federal government had in essence agreed with this concept that, well, yes, while the 21st Amendment may have been lawful and may have been consistent with the Constitution, but nonetheless, the Supreme Court did have the power to question an amendment on the touchstone of salient features or the basic structure. अब दुनिया भर में इस
स्ट्रक्चर के या इस डॉक्ट्रिन के क्रिटिक्स मौजूद हैं, और कुछ तनकीद जो होती है इसके ऊपर वो लेजिटिमेट भी है कि 17 जजेस किस तरह से आइन का बुनियादी ढांचा तलाश कर सकते हैं। और अल्टीमेटली क्योंकि पार्लियामान है तो के पास ये राइट होना चाहिए कि वो जो भी चाहे वो अमेंडमेंट कर सके। अब एक बात तो ये कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि द लाइफ ऑफ द लॉ इज लॉजिक, and we've seen that the life of the law is not logic, it's experience. एंड हमने अगर अपना एक्सपीरियंस देखा है तो मुतादिद मरतबा हमारे पार्लियामेंट ने इस तरह की अमेंडमेंट्स पास करने की, इस तरह के कवानीन पास करने की कोशिश की है दैट रेज कंसर्न्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। अगर हम आज इस अमेंडमेंट को भी देखते हैं, सो दिस अमेंडमेंट ऑल्सो रेजेस अ नंबर ऑफ क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर रिपब्लिक। इसी तरह हमने देखा कि लेट 90s के अंदर एक कोशिश हुई थी कि जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा था उसको रीब्रांड कर दिया जाता एज अमीरुल मोमिनीन, and as a result, that amendment also raised a number of that proposed amendment raised a number of questions about the future of our democracy. अब जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब ये इलेक्शन भी लड़ती हैं तो इसी आइन के ऊपर इलेक्शन लड़ती हैं। जब आप मिनिस्टर्स बनते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो इसी आइन की प्रेजर्वेशन की आप वादा करते हैं, आप यही ओथ लेते हैं कि आप इस आइन को प्रिजर्व करेंगे। अब अगर आपको मुकम्मल तौर पे इस आइनी निज़ाम के साथ इशू है, देन परहैप्स शुड होल्ड अ रेफरेंडम। आपको इस बात पे इलेक्शन लड़ना चाहिए कि ये आइनी निज़ाम जो है अब इससे इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं हो सकता, तो हमें आप वोट दें ताकि हम इस आइनी निज़ाम को ख़त्म करें। हम पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट को भी ख़त्म कर दें, अदालतों को भी ख़त्म कर दें, एंड इफ द पब्लिक देन वोट्स फॉर यू, देन परहैप्स दैट आर्ग्यूमेंट मे हैव ग्रेटर क्रीडेंस। बट टुडे इस आइन के ऊपर इलेक्शन लड़के आना, पार्लियामेंट में बैठना, और फिर इसी आइन के जो बुनियादी ढांचा है उसको चेंज करना और कहना कि क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिए हैं इसलिए हमारे पास ये इख्तियार है, तो शायद ये वाली बात इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, और शायद ये वाली बात इसलिए इतनी वैलिड नहीं है कि लोगों ने आपको वोट जरूर दिए थे, लेकिन लोगों ने आपको वोट इसीलिए दिए थे कि आप इस आइनी निज़ाम में रहते हुए उनके लिए एक बेहतर हल तलाश कर सकें। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इसको एक और तरह से भी देखती हूँ, और वो ये कि जनरली जब आप इस तरह की कोई भी चीज अगर करने वाले होते हैं, एंड इट इज समथिंग एज बिग एज नॉट जस्ट changing the whole structure of how the court system is going to work, it's also about the fundamental rights का concept जो हम अभी पहले भी discuss कर रहे थे। तो somewhere this to whom does the sovereignty really belong to is also a question in the sense के क्या तरमीम ऐसी हो सकती है जो बुनियादी हकूक के ही खिलाफ चली जाए, इन द सेंस के can people actually expect to vote for people who will be taking away those rights from them, तो रिफॉर्म का भी जो मकसद होता है जनरली, क्या उसके पीछे रिदा आपको नजर आता है कि कोई मकसद डेमोक्रेटिक वैल्यूज को स्ट्रेंथन करना होना चाहिए, या जब हम तरमीम की बात करें तो हमारे पास एक ऐसी आउटलुक या ऐसा मकसद होना चाहिए जिससे हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करें, ना कि उसको मजीद हम कट शॉर्ट कर रहे हो या फिर उसको किसी भी तरह से गिव अप कर रहे हो ऑन दैट डेमोक्रेटिक स्पेस। तो आपको क्या लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रेमेसी और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी के बीच में किस तरह से आप इसको कैसे देखती हैं, और आपको क्या लगता है कि रिफॉर्म जब हो, अगर पार्लियामेंट सॉवरेन भी है और वो रिफॉर्म करे, तो आपके ख्याल में ये जो कॉन्सेप्ट है कि इट शुड बी टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड नॉट टू टेक अवे फ्रॉम इट, ये कोई कॉन्वर्सेशन आपको समझ में आती है? ओवर टू यू रिदा। Thank you so much, Nida. It's great to be on the panel with all three of you. एक चीज़ जो मैं highlight करना चाहूँगी is the difference in language at the outset of the 1962 Constitution and the 1973 Constitution. So the 1962 Constitution, which was Ayub Khan's one-man document, at that time read, I, Field Marshal Muhammad Ayub Khan, do hereby enact this Constitution, which is why this was perceived as a one-man document. The 1973 Constitution at the very outset says, we the people of Pakistan do hereby through our representatives in the National Assembly adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So it's the Constitution in our dispensation that represents the will of the people. जो parliamentary sovereignty का concept है हमारी dispensation में, जहाँ एक written constitution है, बिल्कुल भी नहीं apply करता। हमारी dispensation में आइन सुप्रीम है और पार्लियामेंट की इख्तियार पे
लिमिटेशंस भी लगाई हुई हैं। और पार्लियामेंट ज़रूर एक कानून साज इदारा है, और जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके पास ये पूरा हक है कि वो कानून साजी करें और वो आइन में तब्दीली भी लाएं। ये हक उन्हें आइन देता है। मगर हमारे आइन में बुनियादी इंसानी हकूक़, जैसे आपने बात की, उनका एक बहुत ऊंचा दर्जा है। तो अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है या उससे मुतसादिम है या आइन से मुतसादिम है, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो इस कानून को कलअदम करार डिक्लेयर करें। और मैं इस एक केस के बारे में बात करना चाहूँगी, द राय वर्कड ऑन विच वाज द ट्रायल ऑफ सिविलियंस इन मिलिट्री कोर्ट्स। और इस केस में एक कानून को ही चैलेंज किया था, द पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कुछ सेक्शंस थे जिसको चैलेंज किया था कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं। जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने ये पोजीशन अडॉप्ट की कि क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक्ट एक ऐसा कानून है विच रिलेट्स टू द आर्म्ड फोर्सेस, which relates to members of the armed forces and their discipline, इसको फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे आप चैलेंज ही नहीं कर सकते। और अदालत ने इस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो बुनियादी नुक्ता अदालत के सामने था वो ये था कि शहरियों का कोर्ट मार्शल हो रहा है, और क्या शहरियों का कोर्ट मार्शल बुनियादी इंसानी हकूक से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट नहीं है। और ये एक कानून के ज़रिए ही कुछ मखसूस सूरत हाल में शहरियों का कोर्ट मार्शल हो सकता था। और जो जस्टिस आयशा मलिक का तफसीली फ़ैसला है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि जो शहरियों का फ़ौजी अदालत में ट्रायल है, इट्स नॉट कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। एंड अगेन आई वांट टू एम्फसाइज दैट दिस वाज अ पावर गिवन बाय अ लॉ, एंड शी हेल्ड दैट द प्रोसीजर डेवलप्ड अंडर दैट लॉ, उसके तहत सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ द मिलिट्री एक्ट एज जजेस, बंद कमरों में ट्रायल होते हैं, और कोई तफसील में डिसीजंस नहीं दी गई होती, कोई वजाहत ही नहीं होती डिसीजंस में, सिर्फ लिखा होता है गिल्टी नॉट गिल्टी। तो ये प्रोसीजर एक डेवलप हुआ था जो सिविलियंस को सब्जेक्ट करते थे। तो ये अदालत ने कहा कि ये आइन से मुतसादिम है। तो आज जो हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री सुप्रेमेसी की, जो लोग करते हैं, कल अगर पार्लियामेंट एक कानून बनाए कि आप जो है तमाम फौजदारी जो अदालतें हैं उनको बंद कर दें और सबको आप फौजी अदालत भेज दें, क्या हम इस कानून को तस्लीम करेंगे और कहेंगे कि जी आज से हम सब जो हैं फौजी अदालतों में शहरी जो हैं वो पेश करेंगे, या क्या हम ये सवाल उठाएंगे कि नहीं, पार्लियामेंट के पास ये हक नहीं है कि वो मेरे बुनियादी हक जो है वो छीने, ये जो कानून है ये आइन से मुतसादिम है। सो कुछ प्रोटेक्शंस जो हैं वो आइन ने हमें दी हैं, और मेरी नज़र में ये अदालत की जिम्मेदारी है कि वो उनको इन्फोर्स करे, चाहे वो कानून साजी से वो आए हों। अगर हम बात करें आईनी तरमीम की भी, तो जस्टिस काजी फायज ईसा आजकल अपने कोर्ट में कहते हैं कि जी पार्लियामेंट की इज़्ज़त करें, आईनी इदारों की इज़्ज़त करें। बिल्कुल इज़्ज़त करें, मगर अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा स्टेप उठाने जा रही है जो आइन के ख़िलाफ़ है, तो फिर हम उस पर अपनी आवाज़ उठाएंगे। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने ही 21वीं तरमीम के ज़रिए जब शहरियों का फ़ौजी अदालत में ट्रायल हुआ, उन ट्रायल्स को आइनी तहफ़्फ़ुज़ था, आइनी तरमीम के ज़रिए वो लाई गई थी। और जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा नहीं, आप आइनी तरमीम के ज़रिए भी शहरियों का फ़ौजी अदालत में ट्रायल नहीं कर सकते। और उस वक्त जो तरमीम लाई गई, इट वॉज़ फॉर टेररिस्ट, दहशत गर्दों के लिए वो तरमीम लाई गई। एंड जस्टिस काजी फायज ईसा टू हिज क्रेडिट then said कि no, even terrorists can't be denied their fundamental rights in our dispensation। और उसी फैसले में फिर एज मोइट सेड कि उन्होंने ये सेटल किया कि कुछ सेलियंट फीचर्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे जमहूरियत एक सेलियंट फीचर है, पार्लियामानी निज़ाम, बुनियादी इंसानी हकूक़, एक आज़ाद अदलिया। तो अगर कोई आइनी तरमीम भी इन सेलियंट फीचर्स से कन्फ्लिक्ट करे, तो अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो उस आइनी तरमीम को भी स्ट्राइक डाउन कर दें। मेरा यही सवाल दोबारा जो आई वुड लाइक टू स्ट्रेस ऑन दिस इज कि जजेस के पास इख्तियार क्यों हो। यानी एक तरफ हम बात कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, दूसरी तरफ हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो जो ये कॉन्वर्सेशन है, जो क्रिटिक्स हैं इस सारे डिस्पेंसेशन के, वो यही कहते हैं कि इस तरह तो जजेस सुप्रीम हो गए, तो जजेस क्यों करें, या उनके पास इख्तियार क्यों हो कि वो अंडू कर सकते हैं पार्लियामेंट का लाया हुआ कानून। इस सवाल का जवाब देना बहुत बहुत जरूरी है मेरा ख्याल है। और दूसरा सवाल जो ये करते हैं, हसन इफ यू लाइक टू कम इन ऑन दिस एज वेल। रिदा आप अपना व्यू शेयर कर लें, फिर हसन आपका भी मैं ओपिनियन इस पे लेना चाहूंगी। एक बात ये भी कही जाती है कि इसका मतलब है कि फिर क्या मतलब कभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड ही नहीं हो सकती, हालांकि हमने 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 देखा है कि 25 बार तो हो चुकी है। सो वो उसका क्या तकाजा और पैमाना होता है फिर कि अगर एक तरफ ये सब कुछ है, तो फिर आइन कब और कैसे अमेंड हो सकता है, और इस वाली अमेंडमेंट में क्या मसाइल हैं जो जिसके ऊपर इस तरह से फिर आवाजें उठानी पड़ी हैं। तो यानी
can we draw a line somewhere कि what kind of an amendment is okay and what are the limits to how and when you can amend the constitution? And the previous question on why the judges, why should they be supreme, इसका आप क्या जवाब देंगी रिदा? आई थिंक इसका भी जवाब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन केस में ही उन्होंने दिया था कि द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू डिस्ट्रॉय। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मगर आप उसको पूरी तरह जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, द कॉन्स्टिट्यूशन, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स एट द टाइम, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल। तो जब कोई जज कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स करता है, वो विल ऑफ द पीपल को इन्फोर्स कर रहा है। सो इस बेसिस पे आई थिंक जो हमारा सारा निज़ाम है इट्स बिल्ड। और Yeah, I think that does make sense. Hassan, I'd like you to come in on the same criticism also. जो बार बार हम सुनते हैं कि ये जजेस कौन होते हैं और ये तो सुप्रीम नहीं है, और ये कि फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कभी अमेंड नहीं हो सकती, और हो सकती है तो किन बुनियादों पे, किन प्रिंसिपल्स पे? लेकिन निदा, एज समवन जो कि खुद ये क्रिटिसिजम्स मेक कर चुका है, और देखिए, मैं आई फील लाइक आई हैव ऑलवेज बीन एन एडवोकेट फॉर जुडिशियल रिस्ट्रेंट, एंड के पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट के पास हक होता है कि वो विल ऑफ द पीपल के लिए लॉ मेकिंग कर सकते हैं विद इन द बाउंड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली ये मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ जो रिदा ने भी कही है और मोइज ने भी कही है कि हमारे स्कीम में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। ये बात कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में आप एक कंप्लीटली डिफरेंट स्कीम बनाना चाह रहे हैं यहाँ। और मैं ये भी कहूँगा कि ये बात सिर्फ इधर आईनी तरमीम के लिए तो कही भी जा रही है, मगर ये बात आजकल बहुत ज्यादा दोहराई इस वक्त भी जा रही है कि जी इलेक्शंस एक्ट में हमने तरमीम कर दी है, तो देखें जी पार्लियामेंट तो सुप्रीम है, तो सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला नहीं हमें मानने पड़ेगा। ये बिल्कुल लीगली अनसाउंड आर्ग्यूमेंट है, इसमें कोई बेसिस नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दे दी है, तमाम इदारों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आप पे कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते, पार्लियामेंट ये नहीं कह सकता कि जी नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट कर दिया तो हम मानेंगे नहीं। राइट? हर सिस्टम में, हर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में कोर्ट्स के पास पावर होती है टू इंटरप्रेट, और वो इंटरप्रिटेशन इवेंचुअली फाइनलिटी भी कोर्ट्स के पास आती है। अब देखें, जब 21वीं तरमीम हुई थी, मेरा पर्सनली स्पीकिंग, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट्स, राइट, इवन टेररिज्म के लिए। राइट, मुझे बिल्कुल ये जिस तरह ये ट्रायल्स कंडक्ट होती हैं, कोई ड्यू प्रोसेस नहीं होता, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वकार सेठ साहब की जजमेंट मैं कहूँगा लोग पढ़ें समझने के लिए कि ये कितनी अनजस्ट ट्रायल्स हैं। उस वक्त तो खैर एपीएस का अटैक हुआ, मुल्क में एक फियर पैदा हो गया। एंड आई विल से कि फियर जो है ना, बहुत डेंजरस चीज इसलिए भी होती है क्योंकि जब एक मुल्क डर जाता है ना, लोग अपने फंडामेंटल राइट्स गिव अप करने के लिए बहुत विलिंग हो जाते हैं। और इसलिए हमारे हमारे मुल्क में कुछ लोग हैं, कुछ इदारे हैं जो कॉन्स्टेंटली एक फियर का निज़ाम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि फिर आप हमेशा सिक्योरिटी की तरफ जाते हो। तो इसी तरह हमने भी 21वीं तरमीम नहीं सिर्फ पानी, हमने एक एक्ट भी बना दिया, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट। निदा, आपको याद होगा, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट एक अनोखा लॉ था जो कहता था कि यू आर गिल्टी अंटिल अंटिल यू कैन प्रूव योर इनोसेंस। वो भी हमने बना दिया, सनसेट क्लॉजेस डाल दिए। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तब भी ये था कि देखें, पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इख्तियार है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। आई थिंक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है उस वक्त और इस तरमीम में, वो एक बहुत क्लियर लेजिटिमेसी का मसला है। देखें, कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि इस वक्त जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक बहुत ग्लेयरिंग इश्यूज हैं। कोई नहीं डिनाई कर सकता कि इस वक्त पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है,
सेनेट इनकम्प्लीट है बिकॉज गवर्नमेंट चाहती है कि वो इनकम्प्लीट रहे। कोई नहीं डिनाई कर सकता कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम नहीं किया जाने दे रहा। फिर आप एक आईनी तरमीम ला रहे हो रात के अंधेरे में, जिसमें आप किसी ने ड्राफ्ट नहीं देखा, मगर पार्लियामेंटेरियंस जिनको आप कहते हो कि इज्जत दो, आपने उन्हें ये इज्जत दी कि आपने उन सबको इकट्ठा कर लिया इस्लामाबाद में, रात तक वो बैठे हैं, उन्हें नहीं पता वो किस चीज पे वोट दे रहे हैं, उन्होंने ड्राफ्ट ही नहीं देखा, मगर उन्हें बताया गया है कि जो भी ड्राफ्ट आएगा आपने वोट देना है क्योंकि आप पार्टी डिसिप्लिन के बाउंड हो। तो ये आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उन पार्लियामेंटेरियंस को। तो एक तो यहाँ एक सीरियस लेजिटिमेसी का इशू है जिसको आई डोंट थिंक कोई डिनाई कर सकता है। दिस इज नॉट हाउ यू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल, कि आप उसी अवाम से छुपाओ कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप अमेंडमेंट्स लाओ जो कि सेल्फ सर्विंग हैं, राइट। कोई ये अवाम का मैंडेट नहीं है कि आप ये अमेंडमेंट्स लाओ, राइट। कोई अवाम की आवाज नहीं उठी थी कि आप ये अमेंडमेंट्स लाओ। सो एक तो लेजिटिमेसी का इशू जब आता है तो इट इज अ वेरी सीरियस इशू दैट मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक अदालतें इग्नोर करेंगी। और अभी तो मैंने उस चीज की बात नहीं की कि आप जिस तरह 2/3 मेजोरिटी लेना चाह रहे हैं वो इस तरह है कि आप पार्लियामेंटेरियंस को अगवा करके उन्हें जबरदस्ती वोट तोड़ के लेने की कोशिश करो, जो कि अब ये 63A का रिव्यू भी लग गया है। अनदर जजमेंट जिसकी इंटरप्रिटेशन से मैं नहीं एग्री करता था, मगर ये एक अमेजिंग चीज है कि मुनीब अख्तर साहब की सारी प्रिडिक्शन सही हो गई जो उन्होंने दी थी, राइट। अब तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाली भी उनकी बात सही लग रही है। सो देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर सेलिएंट फीचर्स वाली बात है, जो 21st अमेंडमेंट वाला केस था उसमें मेजोरिटी ने कहा कि देखिए आपके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, तो वो तो डिसाइड हो गया है, जिस तरह मोइज ने भी कहा था। आई स्टिल रिमेंबर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस केस के बाद, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा मगर उन्होंने कुछ स्ट्राइक डाउन नहीं किया था उस केस में, राइट। दे डिड नॉट स्ट्राइक डाउन द मिलिट्री कोर्ट्स, दे डिड नॉट स्ट्राइक, जो जो दूसरा चैलेंज था वो 18वीं तरमीम की डिफेक्शन क्लॉज पे था, बाय द वे, जो आज फिर से डिबेट हो रहा है। सो मगर अटॉर्नी जनरल साहब जब टीवी पे आए तो वो कह रहे थे कि गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है। एंड आई वाज थिंकिंग कि नहीं, आप यू लॉस्ट वन क्वेश्चन व्हिच वाज, आपकी पोजीशन ये भी थी कि कोई इख्तियार नहीं है जुडिशरी के पास टू स्ट्राइक डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब उस केस में आई थिंक जो मेरी एटलीस्ट रीडिंग है, बिकॉज इट्स 1000 पेजेस लॉन्ग एंड इट्स नॉट अ वेरी इजी जजमेंट टू रीड, आई थिंक यहाँ पे जो क्वेश्चन अनडिसाइडेड है वो ये है कि ये सेलिएंट फीचर्स हैं क्या। आई थिंक देयर वाज नो कंसेंसस ऑन दैट क्वेश्चन फ्रॉम माय रीडिंग, क्योंकि मैं जब उसे देखता हूं, आई थिंक जवाद ख्वाजा साहब का था कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, अजमत सईद वाली जो 7-8 की थी वो कहती थी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। काजी फैज ईसा साहब की थोड़ा सा डिफरेंट व्यू था। सो इट्स नॉट क्लियर। सो आई थिंक अगर कभी ये फिर से क्वेश्चन हो तो ये बहुत एक अहम क्वेश्चन होगा। मगर एक्चुअली द पॉइंट आई वांट टू मेक इज कि उन सारे डिसीजंस को अगर आप ले लें, I don't think there is consensus on acha parliamentary objectives resolution. What I do think there is actually consensus on, या जिसको arguably कहा जा सकता है consensus है, कि independence of judiciary को उन सब ने कहा था कि आप नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि it is, अगर वो judgment पे हम को रेफर किया जाए, I do think the judiciary will assert to protect itself। अब वो हिस्ट्री हमारे जूरिस्प्रूडेंस में एक्चुअली बहुत पीछे जाती है। 1950s में एक्चुअली कॉर्नेलियस की एक जजमेंट है जिसमें ही टॉक्स अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियंस जिसको तब्दील नहीं किया जा सकता, which was then cited in India when they made the Kesavan, I forget the name case का, Sajjan but Singh. It was cited yeah, Sajjan Singh and then Kesavananda.
यस, सो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस है, सो दिस इज एक्चुअली नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। एंड जहां तक ये बात आती है कि जी जजेस कौन है, देखें ये कोई पाकिस्तान का यूनिक कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर सेलिएंट फीचर्स वाला कॉन्सेप्ट है, आप एग्री या डिसएग्री करें, जिस तरह मैंने कहा, मैं तीसरी तरमीम में मैंने डिसएग्री किया था कि ऐसी पावर होनी चाहिए, क्योंकि एंड आई विल कम टू दैट पॉइंट एज वेल, बट इंडिया में एग्जिस्ट करता है, बांग्लादेश में एग्जिस्ट करता है, पाकिस्तान का टर्की ने किया हुआ है। कई कॉन्स्टिट्यूशंस एक्चुअली अपने टेक्स्ट में लिखती हैं कि ये चीजें नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से निकाल सकते। जर्मनी, वी कॉल देम इटर्निटी क्लॉजेस, कि ये प्रोविजन को कोई नहीं चेंज कर सकता, राइट। सो जर्मनी में फॉर एग्जांपल ह्यूमन डिग्निटी का जो प्रोविजन है वो कोई नहीं चेंज कर सकता। दैट्स वन एग्जांपल। आई थिंक जो डिबेट अब, आई थिंक निदा आपने भी सोचा हुआ है इसका, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली आर्टिकल 239 में कहती है कि कोई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नहीं क्वेश्चन कर सकता। एंड उस पे भी आई थिंक वुड लव टू हियर अदर पीपल्स व्यूज, बट मैं उसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात मेरे ओपिनियन पे पता है क्या है? है तो वो टेक्स्ट में, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये अमेंडमेंट इन इट्स करंट फॉर्म एक्चुअली एक डिक्टेटर ने लाया, ज़ियाउल हक लाया था ये अमेंडमेंट इन इट्स करंट फॉर्म, जो कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चैलेंज हो सकती, एंड वो पीसीओ के अंडर लाया था, सही प्रोसेस के थ्रू भी नहीं हुआ था। सो दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। जब लोग इस पॉइंट को रेज करते हैं, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट जो लाया जाता है वो ये है कि वो जिस तरीके से भी वो टेक्स्ट में लाया गया है वो भी क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल, वो क्वेश्चनेबल तो है, लेकिन फिर वो अभी तक है क्यों? इसके ऊपर तब उसके बाद मुकदमे क्यों नहीं फाइल हुए, और ये अभी तक क्यों टेक्स्ट का हिस्सा है? क्योंकि इसमें तो देखें इतना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट अब मुझे नजर आता है। एक तरफ हम अगर आर्टिकल 89 का टेक्स्ट देखें, जिसके, और वो इसलिए मैं कोट कर रही हूँ क्योंकि अभी अभी हाल ही में एक ऑर्डिनेंस भी आई है जिसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि वो भी उसकी भी कंडीशंस मौजूद नहीं थी और आईनी तरीके से वो भी नहीं आई है। लेकिन उसका भी टेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसका आर्टिकल 89 का जो सब क्लॉज 2 है, वो कहता है कि an ordinance promulgated under this article shall have the same force and effect as an act of parliament and shall be subject to like restrictions as the power of parliament to make law. ये तो वाजे करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ही कि पार्लियामेंट के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं, और वही रिस्ट्रिक्शंस जब आप ऑर्डिनेंस पास कर रहे होंगे तो उस पे भी लागू होंगी। तो एक तरफ आपका आइन इस बात की खुद तस्लीम कर रहा है कि देर आर रिस्ट्रिक्शंस ऑन पार्लियामेंट्स लॉ मेकिंग पावर and the same apply to the president when he's passing an ordinance, और दूसरी तरफ आपके पास एक conflicting 239 5 and 6 आपके पास आता है। So it's very interesting for me to see के how this is allowed to continue and why this hasn't been challenged. Moiz, would you like to come in on this? I think Nida, पहले तो एक distinction, we have to make a distinction that there are two kinds of restrictions on the parliament's powers. There are restrictions on the parliament's powers to legislate, because every legislation has to be consistent with the constitution, and I think इस हवाले से तो कोई debate या disagreement नहीं है। एक दूसरा पार्लियामेंट के पास पावर है to amend the constitution. Now, Article 239 it doesn't refer to, it only speaks about amendments to the constitution. ना उस हवाले से भी हमने अब देखा है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूसिवली इस सवाल का भी जवाब दिया। लेकिन जैसे आपने कहा कि फिर सवाल पैदा होते हैं कि जब ये 239 क्लियरली स्टिपुलेट करता है कि एन अमेंडमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चनड, then how can 17 unelected individuals then locate or find a basic structure in the constitution and then create fetters on the parliament's right to amend the constitution? अब इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये एक स्ट्रॉमैन आइडिया है कि अगर इस तरह हुआ तो जजेस ने कभी पाकिस्तान की आइन को अमेंड करने ही नहीं देना पार्लियामेंट को। हमने देखा है कि 40 सालों के अंदर देयर हैव बीन 25 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन and no amendment has been struck down by the Supreme Court. So this idea that any fetters on the parliament's powers will completely obviate the parliament's power to amend the constitution, this is not consistent with the facts. This has never happened in the past. लेकिन क्या अब पार्लियामेंट को एक मुकम्मल ये इख्तियार दे दिया जाए कि जिस आइन के तहत आप पार्लियामेंट वजूद में आया है आप उस आइन को ही तब्दील कर दें?
यानी आप इलेक्ट होने के बाद कहें कि हम 10 साल तक कोई इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, बुनियादी तौर पर जो लोगों के बुनियादी हुकूक हैं उनको भी सर्व कर लेंगे, तो इस तरह के इख्तियार पार्लियामेंट को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिस तरह रिदा ने भी कहा था, the preamble to the constitution says that it is the people who have come together and enacted this constitution, and it is the people's desire to have an order to govern their affairs. So as a result, it is the people who must come before the constitution and before every other institution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन सबसे पहले लोग आते हैं, उसके बाद आइन आती है, उसके बाद जुडिशरी और पार्लियामान आता है। और जहां तक इसको कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का ताल्लुक है, सो ये डिबेट दुनिया भर में है। हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर देयर इज अ व्यू कॉल्ड डिपार्टमेंटलिज्म, that every institution has the right to interpret the constitution in any manner that they deem appropriate. Ultimately, in any dispensation which has a written and a codified constitution, it is the Supreme Court which is the final arbiter of the law. Now, as I said, there are throughout the world. In America, for example, हम देखते हैं कि बहुत सारे contentious issues पे, चाहे वो abortion हो, चाहे same sex marriage हो, चाहे और कवानीन हो, लोग डिबेट करते हैं, डिसएग्री करते हैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन से, बट द सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली, एंड देयर आर आल्सो पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज वेल. There are constituencies that the Supreme Court also appeals to, and there are opportunities, there are chances where the court also revisits its own prior decisions. हमने हाल ही में देखा कि समीउल्लाह बलोच केस में, फॉर एग्जांपल 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंशन नहीं करता कि एक डिस्क्वालिफिकेशन कितने साल की है, लिहाजा द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट साइलेंस इन आर्टिकल 62 टू मीन दैट अ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दैट आर्टिकल वुड लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम. But nonetheless, there were critiques of that interpretation, and as a result, in 2024, we saw the Supreme Court revisit its own earlier opinion. और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, वो हमारी जो इंटरप्रिटेशन थी वो आइन से मुतसादिम थी, और आज हमारी इंटरप्रिटेशन ये है कि आर्टिकल 62 की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फॉर लाइफ टाइम लास्ट नहीं करेगी. तो एक तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी इंटरप्रिटेशन चेंज करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड देयर आर अपॉर्चुनिटीज, देयर आर चांसेस दैट a Supreme Court judgment, the effect of that judgment can be nullified by changing the basis of that judgment. आप आइन को भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आइन को क्या आप इस तरह तब्दील कर सकते हैं कि आप इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी को सल्ब कर दें? आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, दीज इंस्टीट्यूशंस इंश्योर आवर फ्रीडम. सो अगर पार्लियामेंट ये कहता है कि हम जजेस किस तरह बेसिक स्ट्रक्चर को रीड इन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आई थिंक एक और बुनियादी सवाल ये है कि पार्लियामेंट ऐसी अमेंडमेंट्स क्यों करना चाहेगा जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी से इनकंसिस्टेंट हो? पार्लियामेंट ऐसी अमेंडमेंट्स क्यों करना चाहेगा जो बुनियादी आईनी हुकूक से इनकंसिस्टेंट हो? सो एज अ रिजल्ट, देयर इज also a degree of trust that that the constitution reposes in all these institutions. So the constitution assumes that the judiciary would not encroach on the parliament space, and the constitution also assumes or reposes in the parliament that the parliament will stay true to the mandate which went to it. हमने देखा अभी recent only survive when there's a degree of forbearance. So without these values, without institutional forbearance, without mutual toleration, a constitution cannot survive in any event. So I think ये एक बात है कि गो के हमारी जो है फाइनल आर्बिटर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉनदलेस द कॉन्स्टिट्यूशन presupposes or assumes that all institutions, चाहे वो पार्लियामान हो या वो अदलिया हो, वो एक डिग्री ऑफ इंस्टीट्यूशनल फोरबेरेंस डिस्प्ले करेंगी और दूसरे की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन नहीं करेंगी. आज जो हम आइन देखते हैं, हसन ने बात की लेजिटिमेसी की, हमने अभी देखा कि our preamble says that it is the people who come before the constitution, before any institution. Nonetheless, this amendment completely excludes the people from this process. आज जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वही इस पूरे प्रोसेस से आपने उनको एक्सक्लूड कर दिया कि आज मुझे और आपको पता नहीं है कि ऑफिशियल टेक्स्ट है क्या अमेंडमेंट का. हम अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो व्हाट द ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज. दूसरी बात, वो पार्लियामेंट जो कि आज इसको डेलिब्रेट कर रही है इस अमेंडमेंट को, उस पार्लियामेंट की अपनी लेजिटिमेसी भी क्वेश्चन में है. So as a result, there's a severe legitimacy crisis that surrounds this amendment. And I think when we talk about interpretation of the law, when we talk about notions like parliamentary sovereignty, we cannot lose sight of the facts which underpin this amendment as well.
Thank you so much. Moise, if I hear you correctly, you're saying that there are instances and examples of when the judges have overstepped their space as well. जैसे 63A वाली judgment का आपने हवाला दिया, और ऐसी कई और judgments होंगी that may seem to have rewritten the constitution, जिस तरह कहा जाता है. तो ऐसे instances में आपका क्या ख्याल है, पार्लियामेंट को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए, या लोगों को या दूसरे इदारों को, मतलब इज देयर अ फ्रीडम टू not apply the judgments, or not sort of implement the judgments that people think that are against these concepts, because अगर लोग सुप्रीम है तो फिर वो, if parliament is overstepping तो वो तब भी सुप्रीम है, और अगर जजेस उनको लगता है कि वो ओवरस्टेप कर रहे हैं तो क्या आर दे ऑल्सो फ्री टू इग्नोर such judgments? Yeah, what happens in the case of judges overstepping, and how should people respond to that? Like, should they file review petitions? Should there be, again, outburst on social media? How can they express, because you see parliament को तो फिर भी pressure किया जा सकता है, वो elected representatives हैं. And again, playing the devil's advocate here, how do you address this in the case of unelected 17 judges sitting over there? और फिर हम देखते हैं कि जजेस की किरदार कशी भी हो रही है. हम देख रहे हैं कि एक तरह से लोगों ने वो रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया कि अब किसी भी तरह की, और जिस तरह के अटैक्स जुडिशरी पे हो रहे हैं और जजेस पे पर्सनली होते हैं जब वो कहीं भी आ जा रहे हैं, या सोशल मीडिया पे जिस तरह उनकी तस्वीरों के साथ हो रहा होता है, तो ये हम किस डोमेन में एंटर कर गए कि वेयर judges are also not seem to be aligned with the kind of decisions that the people are expecting. तो अब ये भी क्या एक नया प्रेशर होगा जजेस पे, या जब इस तरह से होता है तो how do you, where do you see this going in terms of people being sovereign and then reacting to instances where they think that the judges have overstepped their power? देखिए, पहली बात तो I don't think the judges' decisions have to align with people's expectations, because people can be xenophobic. People can, for instance, a certain majority may want to encroach on the rights of certain religious minorities. Men may not want to give rights to women. So judges' decisions should not be dictated by public opinion. इसके ऊपर तो I think all of us should be very clear. दूसरी जो आपने बात की, बिल्कुल ये कंसर्न है कि there are instances where the judiciary's decisions appear to be inconsistent with the express text of the constitution. लेकिन इसका तयन किसने करना है? अगर हमने हर एक को इख्तियार दे दिया, मुझको, आपको, रिदा को, हसन को, हम सबको इख्तियार मिल जाए, तो हम हर केस में जहां मेरे और आपके खिलाफ फैसला होता है, हम कह सकते हैं कि हम तो नहीं मानेंगे इस फैसले को, क्योंकि मेरे ख्याल में जो जज साहब की इंटरप्रिटेशन थी वो कानून से बरक्स थी. तो इसलिए इन एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम, whether or not you like a judicial decision, you have to implement and enforce that decision. हमने देखा, फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के अंदर हम अगर पिछले 10 साल में देखें, the Supreme Court has disqualified 2 prime ministers. Both those prime ministers could have continued in office by saying that, well, in my opinion, this decision is not correct. I am a litigator. Every single day I participate or I represent clients in cases, some of which are decided in our favor, some are not. तो अगर हमने ये लोगों को इख्तियार दे दिया कि जो फैसला आपको पसंद ना आए, या जो फैसला आपकी दानिश में ठीक ना हो, आप उसके ऊपर अमल दरामद ना करें, तो फिर ये तो इसको हम जमहूरियत नहीं कह सकती, तो फिर एक एनार्की वाली सिचुएशन होगी. लेकिन having said that, where there are certain decisions that appear to be inconsistent, that appear to be alien to the constitution, then there are certain measures that can be taken. One, previous decision. But for instance, अगर हम 63A के फैसले की बात करें, अगर आज ये आईनी तरमीम आती और ये सिर्फ 63A को अमेंड करता in a manner which nullified the Supreme Court's earlier decision, तो शायद बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर एतराज नहीं करते. अगर एक ट्रांसपेरेंट अंदाज के अंदर ये अमेंडमेंट को प्रपोज किया जाता, लोग डेलिब्रेट करते, डिबेट करते, इसके ऊपर कुछ लोग अग्री करते, कुछ डिसएग्री करते, लेकिन इस प्रोसेस की इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल नहीं उठता. लेकिन आज आपने 63A के साथ साथ आपने मुकम्मल तौर पे आइन का ढांचा बदल दिया. आपने एक क्लास और एक कैटेगरी ऑफ केसेस सुप्रीम कोर्ट से उठा के एक और सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेज दिए हैं. वो केसेस जहां पे we know that the Supreme Court has recently announced certain judgments which have irked the government. उन केसेस का रिव्यू पेंडिंग हो और आप एक ऐसी तरमीम लाएं कि वो सारे केसेस किसी और अदालत में चले जाएं, जिसके जो जजेस का तयन भी आपने करना है, उनकी अपॉइंटमेंट भी आपने करनी है,
पार्लियामेंटेरियंस को यरगमाल बना दिया गया हो, जहां पे उनको कहा हो कि आप कन्फाइंड रहेंगे एक स्पेस के अंदर, आपको पता नहीं होगा आपने कौन सी अमेंडमेंट के ऊपर आपने रबर करना है, आपने सिर्फ आना है, ना पूछना है कि अमेंडमेंट क्या होगी, ना सवाल करना है, आपने सिर्फ आना है, साइन करना और चले जाना है. सो द इंटायर मैनर, nobody is questioning the parliament's right to amend the constitution. The parliament has the right to amend the constitution within a certain framework, yes. But यहाँ पे आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या अमेंडमेंट आ रही है. सवाल ये है कि अगर तो ये अमेंडमेंट इतनी अनएक्सेप्शनेबल है, अगर तो इस अमेंडमेंट में इतनी कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, तो ये लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं की जा रही. ये संडे को रात 11-12 बजे पार्लियामेंट का इजलास क्यों बुलाया जा रहा है. आज आप किसी पार्लियामेंटेरियन से पूछें तो उनको खुद नहीं पता कि अमेंडमेंट क्या आ रही है. So, opacity is perhaps one thing which is also inconsistent with any democratic society is opacity. Constitution making and the process to amend a constitution requires a degree of transparency. क्योंकि जो भी आइन आती है, लोग आज बात कर रहे हैं कि कुछ जजेस के टेन्योर को अफेक्ट किया जाएगा, शायद किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली 3 साल 5 साल बाद ये जजेस जो आज मुतासर होंगे वो रिटायर हो चुके होंगे. अगले 25-30 साल में और आप, हमारे राइट्स मुतासर होंगे इस आइन से. वो लोग मुतासर होंगे जिन्होंने इस मुल्क में रहना है, काम करना है. हमारे सोचने की, बात करने की सलाहियत और बोलने और बात करने का इजहार का राइट जो है वो अफेक्ट होगा. लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा, आज मुझे और आपको नहीं पता क्या अमेंडमेंट आ रही है. सो लिहाजा टुडे द प्रॉब्लम्स, यस देयर आर प्रॉब्लम्स विद द टेक्स्ट ऑफ दिस अमेंडमेंट, बट देयर आर ग्रेटर प्रॉब्लम्स विद द मैनर इन व्हिच दिस अमेंडमेंट इज बीइंग ब्रॉट. I think that's And the yeah, fact, the way in which this amendment is being brought also raises concerns about the text. बिल्कुल नहीं नहीं, आपने बल्कि अच्छा ये ड्रॉ किया है डिस्टिंक्शन कि इट्स नॉट जस्ट द कंटेंट या सब्सटेंस ऑफ इट जिसके ऊपर सवाल उठ सकते हैं, बट आई थिंक ज्यादा इस वक्त तो खदशात जिस तरीके से ये लाई जा रही थी और जिस तरह से ये हम अपने स्क्रीन्स पे अनफोल्ड होते देख रहे थे उस टाइम पे. रिदा, मैं आपकी तरफ आऊंगी. यही बात एक्चुअली कि अब हमने काफी सारा इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस तो कर लिया है कि पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या है, क्या लिमिट्स हैं, और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या है. तो आप कुछ स्पेसिफिकली हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर जो प्रपोज्ड ड्राफ्ट सर्कुलेट हुआ उस हवाले से आप हाईलाइट करना चाहें कि ऐसी क्या उसके अंदर बुनियादी चीजें हैं जो मेरे और आपके हकूक से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे पॉइंट्स, और क्या ऐसे उसके अंदर ऐसी प्रोविजंस हैं जिससे आपको लगता है कि अगर वो आ भी जाए तो वो स्ट्राइक डाउन कर दी जा सकती है, या मतलब कोर्ट्स उसको प्रोबेबली डेफिनेटली रिव्यू जरूर करेंगे एंड ऑल. तो आपके ख्याल में जो इस वक्त प्रपोज ड्राफ्ट है उसके अंदर ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो आपको लगता है कि पोटेंशली कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी स्कीम के साथ जो है वो अलाइंड नहीं है? I'll just briefly outline the provisions which I find the most problematic. There are a lot of provisions in this bill. सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत problematic लगती है कि जो आईनी अदालत बनाई जा रही है उनका जो पहला चीफ जस्टिस आईनी अदालत का प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट करेंगे, और ये मेरी नज़र में एक आज़ाद अदलिया के प्रिंसिपल से बिल्कुल ख़िलाफ़ है. जो हुकूमत है वो आईनी मामलात में पार्टी होती है और हुकूमत इस आईनी अदालत के सामने पेश होगी. क्या हुकूमत का अपॉइंटेड चीफ जस्टिस आज़ाद और गैर जानिबदार फैसला कर सकता है जब हुकूमत ही पार्टी होगी? तो मेरी नज़र में ये तो बिल्कुल एक आज़ाद अदलिया के कॉन्सेप्ट से ख़िलाफ़ है कि जो आपके वज़ीर आज़म हैं वो बेसिकली पहले चीफ जस्टिस जो हैं आईनी अदालत के उनको हैंड पिक करें. दूसरी जो चीज़ है, जो आईनी अदालत है इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट के कोई फैसले जो हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे. और अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट है, लार्जर बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने पुराने डिसीजन जो हैं वो ओवरटर्न कर सकते हैं. मगर जो आपका प्रेसिडेंट सालों से सेट हुआ है, जो एक सर्टेनिटी है ऑफ लॉ, वो सारी आप एक ख़त्म कर रहे हैं कि एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिस पे अब कोई प्रेसिडेंट बाइंडिंग नहीं है और वो आगे जो मर्जी करें, वो जो मर्जी कानून जो है वो सेट कर सकते हैं. दूसरी जो चीज़ इसमें की है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जो हम देखते आ रहे हैं सीनियरिटी के बेसिस पे जो है अपॉइंट होते हैं, वो अब द 3 मोस्ट सीनियर जजेस, एक नेशनल असेंबली की कमेटी जो है 8 रुकनी कमेटी, वो चूज़ करेगी कि कौन जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बनेगा. ये भी मेरी नज़र में एक आज़ाद अदलिया के प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आप फिर
3 सीनियर जजेस में इतना आप डिस्क्रेशन दे रहे हैं उस नेशनल असेंबली कमेटी को, तो वो जो 3 सीनियर जजेस हैं, फिर अगेन जब वो हुकूमत की कोई केस होगा, तो क्या वो उन 3 सीनियर जजेस में क्यों हम ये कर रहे हैं? आपने एक कन्वेंशन सेट कर दी थी कि सीनियरिटी के बेसिस पे जो चीफ जस्टिस है वो अपॉइंट होंगे। ऐसी क्या सूरत हाल है प्रेजेंटली जो आप इसको बदल रहे हैं? क्योंकि अफसोस से कहना पड़ता है, यू कांट एट्रीब्यूट बैड फेथ टू द लेजिस्लेचर, कि जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं वो स्पेसिफिक जजेस को टारगेट करने के लिए की जा रही हैं। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का भी कानून, टू डाइग्रेस सॉरी, बट अगेन वो भी इसीलिए अमेंड किया गया है, लग इसीलिए रहा है कि आप एक जज को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं, इसलिए हुकूमत बैठी है कि जो जजेस उन्हें पसंद नहीं हैं, जो जजेस उनके खिलाफ फैसले देते हैं, उनको उनको वो कानून साजी के ज़रिए, ऑर्डिनेंस के ज़रिए, आइनी तरमीम के ज़रिए उन्हें वो एक्सक्लूड करने की कोशिश करें। ये पब्लिक डोमेन में है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी में कहा कि 63A का रिव्यू छुट्टियों में ना लगे, छुट्टियों की बाद लगे। जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि जो तफसीली फैसला है वो तो आने दें, उसके बाद रिव्यू जो है हम लगा देंगे। तो उन्होंने आपके खिलाफ, और व्हाट यू परसीव टू बी आपके खिलाफ, कुछ जो हैं वो फैसले दिया, आपने उनको कमेटी से हटा दिया और चीफ जस्टिस ने फौरन उस ऑर्डिनेंस पे अमल कर दिया। तो जो इस वक्त ऑर्डिनेंसेस, कानून साजी की जा रही है, आईनी तरमीम की जा, वो सिर्फ एक मकसद से लग रहा है की जा रही है। हम कानून की भी बात करें, जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था, हुकूमत की आज ये पोजीशन है कि अदालत उज़्मा का एक फैसला, जो एक फुल कोर्ट का फैसला है, वो बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट एक कानून ले आई है और उस कानून के जरिए वो जो फैसला है वो अनडू हो गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला अब आ गया है, उसमें उन्होंने आइन की तशरीह की है। तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट अगर आइन की तशरीह करे, आप उसको आम कानून साजी के जरिए अनडू कर सकते हैं? और इस पे भी हमारा सेटल्ड प्रिंसिपल है कि आप सुप्रीम कोर्ट जब आइन की तशरीह करे, उसको आप आम कानून साजी के जरिए अनडू नहीं कर सकते। आपको फिर 2 दहाई अक्सरियत चाहिए, आप आइनी तरमीम लाएं। तो जो स्पेसिफिक पर्पस लग रहा है इस जो रजीम है सारी, वो यही है कि जो उनके खिलाफ कोई फैसला आए वो उसको वो अनडू कर दें। कमिंग बैक टू दी अमेंडमेंट्स, एक ये भी उन्होंने प्रोविजन डाल दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ना आईनी मामलात सुनेगी, जो रिट से अपील आएगी हाई कोर्ट से वो भी जो सुप्रीम कोर्ट है वो नहीं सुनेगी। तो अब आपके जो ये नया मॉडल है जो आपने इस आईनी तरमीम में बनाया, इसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होगा? मेरी नज़र में तो आपने सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल एक तरह से अबॉलिश और रिडंडेंट बना दिया है इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के जरिए। सुप्रीम कोर्ट विल नाउ बी सबसर्विएंट टू द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो क्या रोल आपके सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो प्ले करेंगे इस पूरे निज़ाम में? एक और प्रोविजन फिर ये है कि दैट नो ऑर्डर अंडर द रिट जुरिस्डिक्शन 199 विल बी पास्ड अगेंस्ट दोज हु आर परफॉर्मिंग फंक्शंस अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू नेशनल सिक्योरिटी। और ये एक इतनी खौफनाक प्रोविजन है कि जब मैंने ये अमेंडमेंट्स पढ़ी, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग अमेंडमेंट्स फॉर मी, कि आप हाई कोर्ट्स का इख्तियार रोक रहे हैं कि वो कोई ऑर्डर ना पास कर सके अगर कोई रियासती अदारा कहे कि हम नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो काम कर रहे हैं। अब जो जबरी गुमशुदगी के केसेस होते हैं, मिसिंग पर्सनस के केसेस होते हैं, उसमें जो एलिगेशन होती है वो रियासत के खिलाफ होती है और रियासत के इदारों के खिलाफ होती है। उन केसेस में हम रिसेंटली देख रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना सिर्फ कह रहे थे कि जो लोग लापता किया गए हैं उनको बाजियाब किया जाए, मगर उन्होंने एहतसाब का भी बात किया कि जो लोग फोर्स डिसअपेरेंसेस में इन्वॉल्व हैं उनका एहतसाब भी हो। और जस्टिस बाबर सत्तार बहुत, और भी जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बहुत पोजीशंस ले रहे हैं, तो आपने अब उनका भी एक तरह से आपने हाथ बांध दिए। और हमारे मुल्क में हमने देखा है कि नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती को किस तरह यूज़ किया जाता है। इंटर्नमेंट सेंटर्स बनाए गए खैबर पख्तूनख्वा, जो आज तक सुप्रीम कोर्ट ने केस नहीं लगाया। वो कहा गया कि जी हमने कौमी सलामती के लिए शहरियों को इंटर्नमेंट सेंटर्स में बंद किया हुआ है। ट्विटर क्यों बैन किया हुआ है? ट्विटर इसलिए बैन किया हुआ है क्योंकि हमने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बैन किया हुआ है। तो हर चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी का कवर दिया जाता है कि ये हमने इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की है। और अब आपने हाई कोर्ट्स का भी, आप एक तरह से उनकी जो पावर है वो लेना चाह रहे हैं। और ये भी अगेन व्हाट इज इट इज़ एन अटैक ऑन इंडिपेंडेंट जजेस। एक और प्रोविजन ये भी है कि जजेस कैन बी ट्रांसफर्ड ऑफ द हाई कोर्ट्स विदाउट देयर कंसेंट। प्रीवियसली यू वुड रिक्वायर द कंसेंट ऑफ अ हाई कोर्ट जज बिफोर देयर ट्रांसफर। अब आपने वो जो कंसेंट की जो
प्रोविजन है आपने उसको चेंज कर दी है। अगेन क्यों आपने ये अमेंडमेंट लाए हैं, और कोई रीजंस भी नहीं दी गई। और इसको भी अगर हम कंटेक्चुअलाइज करें, अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने खत लिखा जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ कुछ बातें की। अब आप अपने आप को ये इख्तियार दे रहे हैं कि जज के कंसेंट के बगैर आप उनको जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू ऐड अबाउट द अमेंडमेंट्स इज के जो लॉज हैं रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस, कुछ कानून related to the appointment, reappointment, extension of the service chiefs, which includes the Chief of Army Staff, the Naval Chief, उनको आपने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर दे दिया। और आपने कहा कि अगर आपने इन कानून को बदलना है तो आपको आईनी तरमीम लानी होगी, ये आम कानून साजी के ज़रिए आप इसको नहीं बदल सकते। और मेरी नज़र में अगर आप किसी चीज़ को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहे हैं तो फिर आप प्रॉपर आइन की जो प्रोविजंस है आप उसको इंक्लूड करें। आप ये नहीं कर सकते कि आपके ये जो पूरा कानून है रिलेटेड टू द आर्म्ड फोर्सेस एंड रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन, इस सब को हम जो है आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। जो इससे हो सकता है पोटेंशली वो ये होगा कि जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है, they will not be able to amend laws relating to the armed forces which have been identified unless they have a two-thirds majority. और ये भी मेरी नज़र में एक प्रॉब्लमैटिक प्रोविजन है कि आपने एक आम कानून को एक दो लाइंस लिख के आपने उस कानून को जो है आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। मेरा ख्याल है रिदा, इसमें ईसीपी की जो है कमिश्नर्स और उनके जो मेंबर्स हैं उसके हवाले से भी कुछ ऐसी प्रपोजल्स मौजूद हैं जिसमें उनके टेन्योर की एक्सटेंशन की बात है, और ये भी कि उनको सिंपल मेजॉरिटी से एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और जब तक उनकी रिप्लेसमेंट ना मिले तो दे कैन कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस। तो अगेन जो इंटेग्रिटी और लेजिटिमेसी की बात पहले हसन और मोइज ने की, वो इससे भी नजर आता है कि जहां एक तरफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को कंस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वहीं पे ईसीपी और आर्म्ड फोर्सेस और दूसरे इदारों को एक तरह से कवर या एक्सपेंशन या स्कोप उनका बढ़ाया जा रहा है। तो ये दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्राइकिंग कंपैरिजन फॉर मी टू सी कि हु इज बीइंग सब्जुगेटेड एंड व्हाट इज बीइंग एनहांस्ड, हु इज बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस। तो ये एक बहुत उसका वाजे पहलू है। मैं Sorry if I can just add one thing here. श्योर। I think it's important कि ये जो amendments है इनको हम contextualize करें, क्योंकि हुकूमत अभी बहुत जल्दबाजी में है। और वो तो अभी भी हुकूमत के जो कुछ नुमाइंदे हैं वो कह रहे हैं हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम अगले हफ्ते जो हैं इस आइनी तरमीम को टेबल करेंगे। और ये उनका अप्रोच है। उनके दिमाग में ये नहीं है कि वो आइन तब्दील करें, उनके दिमाग में है कि ये नंबर्स गेम है, हमें यहाँ से नंबर्स मिले, हमें वहाँ से नंबर्स मिले, हम लोगों को जो है वो अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला है उस पर हम अमल नहीं करेंगे और किसी तरह जो है हम इस आईनी तरमीम को जो है वो बुलडोज कर देंगे। बिल्कुल। अगर हम ईसीपी वाले को भी जो अमेंडमेंट है उसको कंटेक्चुअलाइज करें, ईसीपी इस वक्त किसके हक में फैसले दे रही है? हुकूमत के हक में फैसले दे रही है। तो और अभी हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी पढ़ें तफसीली जो आई है मखसूस नशिस्तों वाले केस में, उसमें मेरी नज़र में तो वो जजमेंट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। उसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन का एक रोल है एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में, और 2024 के इलेक्शंस के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना रोल जो है वो नहीं अदा किया जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम अमेंडमेंट्स देखें तो जो इदारा उनके हक में फैसले कर रहा है उसको वो ज़्यादा मजबूत करें, जो उनको लग रहा है इदारा जो बेसिकली इस वक्त जुडिशरी है उनको वो कह रहे हैं इसको हम किस तरह अंडरमाइन करें और जुडिशरी को है हम किस तरह अटैक करें। और ये एक इतनी अफसोसनाक सूरत हाल इसलिए भी है क्योंकि आपने सारे इदारों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर दिया है कि बिल्कुल अब एक इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश हो रहा है इदारों के बीच में। बिल्कुल। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि इवन जो ये नया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बना भी रहे हैं उसके अंदर भी वो कहते हैं सिर्फ डिक्लेरेटरी पावर होगी, और इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन की कोई प्रोविजन भी जो है दैट कांट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन, यानी कि उसको इंटरप्रेट आप कर सकते हैं लेकिन उसे स्ट्राइक डाउन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड भी नहीं कर सकता। इस हवाले से भी चीज़ें हैं। और एक जो जिस चीज़ पे मेरा ख्याल है ज़्यादा बात नहीं हुई वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉम्पोजिशन को भी जिस तरीके से छेड़ा गया है उसमें हाई कोर्ट्स सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक ये इम्पैक्ट नहीं है इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स का। हाई कोर्ट को सिरे से निकाल ही दिया है फ्रॉम जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, जो कि पहले हाई कोर्ट्स के चीफ के पास एक काफ़ी रोल होता था कि वो नॉमिनेशंस देते थे कि किसको आगे जो है कंसिडर किया जाना चाहिए। अब की जो शक्ल है
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, उसमें हाई कोर्ट्स में से रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दी गई है बिल्कुल. सो वो भी एक तरह का, आई फील दैट्स अनदर वे टू कट टू साइज the judiciary's role and involvement in judicial appointments, which is again raising a question mark on the independence of judiciary, because उसके अंदर भी वो जो parliamentary committee है उसे merge कर दिया गया into one JCP, and we can see that more people are from, I think, the government side, जिसे कहा जाता है. So I think that itself is problematic. और एक चीज जो being somebody from women in law, जो हमारा काफी अरसे से एक कॉन्वर्सेशन रही है, कि टेक्निकलिटीज ले आते हैं गेट कीपिंग करने के लिए, और वो मजीद एजिस्ट मतलब मजीद ऐसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं टेक्निकलिटीज को, जिसकी वजह से खवातीन जो वकला हैं या जो इस फील्ड में है भी, उनके लिए मोर एंड मोर डिफिकल्ट होता जाता है ऑफ रीचिंग दीज कॉरिडोर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड वेर एवर पावर इज. तो JCP में से ना सिर्फ आपने हाई कोर्ट के जजेस का रोल खत्म किया, बल्कि आपने जो बार का पहले नुमाइंदा उसमें होना था, उसके लिए ये शर्त भी रख दी कि उसकी कम से कम 20 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी होना चाहिए. तो आप मजीद लिमिट करते जा रहे हैं ये स्पेसेस फॉर विमेन. वी नो दैट ओनली 4% ऑफ विमेन मेक अप एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसको भी अगर हम डिटेल में एक्सप्लोर करना शुरू करें तो वी नो दैट देयर इज अ होल डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस, not just discriminatory but also arbitrary process of how licenses interviews are conducted, how your work is allocated, how many number of cases you need to appear in as a counsel, तो फिर आप जाके eligible होंगे for that interview, फिर आपकी डिग्री वेरीफाई होनी है, all of that. So I think by increasing age limits from 10 to 15, 15 to 20, मतलब कई जगह पे हमने देखा है कि उन्होंने एलिजिबिलिटी भी बढ़ा दी है मजीद, एंड दैट इज ऑब्वियसली टू द डिसएडवांटेज ऑफ यंग लॉयर्स एंड विमेन इन पर्टिकुलर. सिर्फ एक जगह पे एज कम की है, विच इज इन द हाई कोर्ट्स, जो कि पहले 40 थी, फिर 45 की गई, अब वापस 40 इयर्स पे ले आए हैं वो. सो आई डोंट इवन अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या साइंस है, कि एक तरफ वो रोल खत्म कर रहे हैं हाई कोर्ट के जजेस का, दूसरी तरफ एज कम कर रहे हैं. और JCP में भी नुमाइंदगी खवातीन की पहले ही मुश्किल थी, कभी भी बार ने किसी खातून को पहले नहीं नॉमिनेट किया, और वेरी फ्यू इंसिडेंट्स, आई थिंक देयर जस्ट बीन 2 पीपल जो प्रोविंशियल JCPs का हिस्सा रही हैं, और अभी उनमें से एक शायद वो हैं जो पहले जज भी थी, माजदा रिजवी साहिबा. शी इज पार्ट ऑफ द करंट JCP जब वो सिंध हाई कोर्ट के लिए बैठती है. सो ये सारी वो उसके जेंडर एस्पेक्ट्स हैं. और जब 18वीं तरमीम हो रही थी और जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का जब तरीका नया वाला आ रहा था, तो मैंने एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ पार्लियामेंटेरियन से बात करने का, तो मैंने उनसे रजा रबानी साहब से बल्कि पूछा कि कितनी खवातीन को कंसल्ट किया गया था जब ये प्रोविजन के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे, इसके ऊपर बात हो रही थी. तो ही थॉट फॉर अ मिनट or two, and then he just looked at me with a blank face at Lums, and he said none. So 0 women were consulted at the point when the 18th amendment was being passed. जैसे कि judicial appointments तो खवातीन का issue है ही नहीं, और हमें representation इन forums में मतलब होनी ही नहीं चाहिए हमारी, और अब आपने JCP में भी हमारी representation मजीद मुश्किल कर दी है. So I feel that यही मसला इस दफा भी हो रहा है कि इतनी बड़ी अमेंडमेंट्स की जा रही है, और ना सिर्फ खवातीन बल्कि किसी को भी, इवन लॉ मिनिस्टर हिमसेल्फ डिड नॉट दिस टाइम हैड एनी क्लू कि ये क्या हो रहा है. जबकि 18वीं तरमीम तो फिर 2 साल डिबेट होती रही, सिविल सोसाइटी को भी मौका दिया गया उस पर बात करने का, एंड at least the process was slightly more participatory than what we see this time around. But क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है, I just want to conclude with our final question to all of you, and all 3 of you, starting with Hassan. आपके ख्याल में क्या, क्योंकि इस वक्त हम यही सुन रहे हैं कि अभी भी ड्राफ्ट्स पे डिबेट चल रही है, हर पार्टी अपना अपना ड्राफ्ट बना के डिस्कस कर रही है, एंड एज रिदा इज ऑल्सो मेंशन के देर स्टिल टॉकिंग अबाउट द नंबर गेम, एंड ऑल्सो वी थिंक दैट दे आर ऑब्वियसली गोइंग टू ट्राई एंड गिव इट अनदर शॉट. तो अभी भी हमारे जो इतराज़ात हैं ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड या पार्टिसिपेशन से रिलेटेड, वो तो वहीं के वहीं है. अगर पार्टीज आपस में भी कोई ड्राफ्ट्स पे काम कर रही हैं तो लोगों तक तो फिर भी नहीं आया ना कि वो क्या ड्राफ्ट्स हैं, उनकी क्या प्रोविजन है. तो आप
आपको क्या लगता है हसन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल निज़ाम में सफिशिएंट प्रोटेक्शन मौजूद है कि इस तरह के जो फ्यूचर अटेम्प्ट्स हैं टू अंडरमाइन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट इस तरह की चीज को विदस्टैंड कर पाएगा? क्या ये पुश बैक हम दे सकेंगे विद इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव? एक दफा एफसीसी बन गया और वो कानून साजी हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ जाती है, तो उस पे फिर सुप्रीम कोर्ट की हैसियत क्या रहेगी? और यू नो व्हाट विल हैपन कि एकदम लॉ पास हो गया तो क्या फौरन ही फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो नहीं अभी तक हुआ होगा क्योंकि उस पे जज पहले अपॉइंट होने से, लाइक ये जो क्लैश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट दैट वी सी ब्रूइंग, आपको क्या नजर आ रहा है कि किस तरह से ये किस तरफ जाएगा और इसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस एग्जिस्टिंग है? हसन, ओवर टू यू। देखिए निदा, जिस तरह अभी ड्राफ्ट बना हुए हैं, अब ये नहीं पता कि अब अगला ड्राफ्ट कैसा होगा। होपफुली गवर्नमेंट को खुद पता होगा कि क्या ड्राफ्ट है जिस दिन वो पास करने की कोशिश करेंगे इस बार। अ, वो तो देखें, अगर पास हो गया तो इट विल बी अ वेरी इट बी अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, राइट? क्योंकि एक तरफ आपने सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन स्ट्रिप कर दी होगी, तो पिटिशन फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए, तो पहला एतराज तो ये आएगा कि आपके पास तो जुरिसडिक्शन ही नहीं। अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट लेट से बन जाता है, उधर फाइल होता है, तो वहां बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि एक अदालत जिस लॉ के तहत बनी है, वो उसी पे रूल उसे करना पड़ रहा है कि वो लेजिटिमेट है या नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पीसीओ है, राइट? ये है यही वो। रिदा और मुइज ने बात की कि जी अपॉइंट भी गवर्नमेंट कर रही है वगैरह, क्योंकि शरीफुद्दीन मिर्जादा साहब भी तो यही करते थे ना। पीसीओ लगता था, वो ओथ आपने पीसीओ पे ली होती थी, और फिर आपके सामने सवाल आ जाता था कि जी पीसीओ वैलिड है या नहीं वैलिड। तो एक ये कनंड्रम भी पेश आ जाएगा। तो बहुत बहुत सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि अगर इस फॉर्म में जिस तरह ये चाह रहे हैं ये पास हुआ, तो देयर विल बी ए जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी मैंने पहले भी बात की थी जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स वाली टॉक की थी, कि इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट है, दो कोर्ट्स के दरमियान में आएगा, इनएविटेबल है। और उस जुरिस्डिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज्यादा खड़े हो जाएंगे कि ये जो कह रहे हैं ना कि आम बंदे को जी हम केसेस नहीं डिसाइड हो रहे, वो वहीं फंस जाएंगे उन जुरिस्डिक्शन। देखिए, आपको पता है कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जो सर्विस के मैटर्स हैं, वो फेडरल सर्विस ट्राइब्यूनल कब जाते हैं और हाई कोर्ट कब जाते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट आज तक हमारे से सही तरह रिजॉल्व नहीं हुआ, राइट? अभी भी उस तरह के जुरिस्डिक्शनल केसेस में कितना कितना टाइम लग जाता है। तो यहाँ तो आप बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं। ये तो हर अपील जो होती है, इवन आप ऑर्डिनरी सिविल अपील में अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन उठा लूं, तो अब वो किधर जाएगी, राइट? हर तकरीबन दैट्स व्हाई वी हैव अ यूनिफाइड सिस्टम। यही तो बात है जो फॉर सम रीजन, मतलब बड़े बड़े कानूनदान जो गवर्नमेंट के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, वो इस बात को समझ रहे नहीं है कि भाई आप एक ये जो सिविल लॉ सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट उठा के हमारे सिस्टम में ला रहे हो, आप ये नहीं कर सकते अनलेस आप पूरे जुडिशल सिस्टम को चेंज करो जिस तरह वो काम कर रहे हैं। तो ये एक डिजास्टर है। मुझे अभी भी, शायद मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे अभी भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हम पुशबैक देखेंगे। आ, उसके कुछ जजेस से, जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनसे, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा पुशबैक, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा में बहुत फर्क है, अनफॉर्चुनेटली। बट आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट किस तरह ये पास करेगी। आई डोंट सी कि उनके पास नंबर्स हैं। ये एक इलेजिटिमेट तरीके से पास होगी, और वो इलेजिटिमेट तरीका इन अमेंडमेंट्स को हमेशा हॉन्ट करेगा। देखिए, मैं, क्योंकि ईसीपी वाली चीज भी हुई और अभी जो ये हो रहा है, सो एक कॉन्सेप्ट है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन, राइट? लीगल थ्योरी में कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है इदारों, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के दरमियान, उसमें
eventually जो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, and this also goes to your question Nida about कि unelected judges किस तरह ये काट लेते हैं वगैरह, and which I've also made the argument. अब मेरे लिहाज से जुडिशियल एक्टिविज्म और इस तरह ये क्रिटिक बड़ा वैलिड है जब जजेस डैम्स बना रहे हैं या जजेस अपनी सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं। अगर जहाँ जजेस फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सीरियसली उसे इस बात पे चैलेंज कर सकते हो जब एक जिम्मेदारी आइन ने उन्हें यही दी है। हाँ, हम बात कर सकते हैं कि बट स्पेशली जहां पे एक सीरियस लेजिटिमेसी क्राइसिस है, एक गवर्नमेंट कोवर्ट तरीके से आपके फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के निज़ाम को ब्रेक अपार्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बिकॉज इट्स एन इनसिक्योर गवर्नमेंट, राइट? इट्स अ गवर्नमेंट दैट नोज। आई मीन ये जो है सेफ्टी भी एक फॉल्स सेंस ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि मुझे हमेशा जो एक्सपीरियंस रहा है वो यही, पहले ये लोग पीका लाए, फिर सबसे ज्यादा पीका में खुद फंसे। उसके बाद यानी जो भी कानून साजी गवर्नमेंट अभी इनको जो भी कहा गया है या जो पिक्चर दी गई है, जब ये हो जाएगी तो जब इनके खिलाफ वो चीजें जाती हैं तो सबसे पहले विक्टिम भी ये खुद ही बनते हैं, उन्हीं कवानीन के जो ये इस तरह अभी एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, या वो जो आप जैसे कह रहे थे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का एक कॉन्सेप्ट हाफ बेक्ड किस्म की वो देके। सो डोंट यू थिंक कि जो सिक्योरिटी भी है या फायदा जो वेस्टेड इंटरेस्ट भी नजर आ रहा है बहुत ही टेम्पररी है, एंड देयर इज नो like they should look at it from the perspective of long term, क्योंकि 199 वाला जो पॉइंट रिदा का था उसी में नेशनल सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है फंडामेंटल राइट्स का, वही इसके इन सब के खिलाफ इस्तेमाल होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सो डोंट यू थिंक इट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी दैट दे थिंक दैट दे आर वर्किंग फॉर? हिस्ट्री से तो ये कुछ सीखते नहीं है, अब क्या कर सकते हैं हम? रियलिटी ये है। ये अभी देखिए निदा, आप बात कर रही हैं, हम सब बात कर रहे हैं निज़ाम को एक लॉन्ग टर्म विजन दे के, तो सिर्फ अगले 3 साल के बारे में सोच रहे हैं कि भाई किसी तरह अगले 3 साल पूरे कर लें। इट्स एन इनसिक्योर गवर्नमेंट, राइट? बिकॉज ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? देखिए, ऑब्वियसली इट्स एन ओपिनियन, बट ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इन्हें लगता है कि अगला जो चीफ जस्टिस आएगा वो कहीं हमारे खिलाफ फैसले ना देने शुरू हो जाए और हमारा निजाम गिर जाएगा। ठीक है। अब हाँ, पास्ट में जुडिशरी ने गलत किया कि प्राइम मिनिस्टर्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया, घर भेज दिया। आई एग्री विद दैट, बट इसलिए आप पूरे निजाम को रिप अपार्ट करने वाले हो, और आप बिल्कुल सही कह रही हो, ये सब कुछ बाद में इन्हें ही जाके लगता है और ये ही फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें भी इनके कॉन्सिक्वेंसेस, इन बेवकूफ फैसलों के कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। मैं जो बात कर रहा था शोडाउन की, उसमें देखिए जब ये होता है ना, इसमें बहुत अहम होता है एक चीज जिसको हम कहते हैं पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट, कि पब्लिक का इस सिचुएशन में किधर लाए करेगा कि हमारा निजाम किस तरह चलना चाहिए। इट्स नॉट थ्रू अ वोट, इट्स नॉट थ्रू अ रेफरेंडम, मगर एक कलेक्टिव एक बनता है। देखें, जब मुशर्रफ ने इफ्तिखार चौधरी को हटाया था तब भी एक बना था। हाँ, लोग अब उसे अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, लॉयर्स मूवमेंट को, कि नहीं नहीं उसका जी फौज का भी सपोर्ट था उसका वगैरह, मगर एट द एंड ऑफ द डे एक कलेक्टिव था कि ये गलत है, राइट? ऐसे नहीं चल सकता। इसी तरह इस सिचुएशन में भी देखें, जब ये सवाल आएगा कि क्या जजेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन करनी चाहिए या नहीं वगैरह, ये जो सीरियस लेजिटिमेसी इश्यूज है ना, दिस विल मीन दैट द पब्लिक सेंटिमेंट विल गो अगेंस्ट देम, दिस गवर्नमेंट एंड दिस अमेंडमेंट, राइट? और एक सेंटिमेंट जब कोलिस कर जाता है तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। इसलिए मैंने कहा था कि इवन यूके का, राइट, जो पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी का कॉन्सेप्ट अब क्यों ऐसा नहीं है जिस तरह एक टाइम पे था, राइट? क्योंकि एक एवोल्यूशन हुई है इन द पब्लिक कि उनका निजाम किस तरह चलना चाहिए, राइट? फ्यू इयर्स अगो आपने यूके में देखा आर वर्सेस मिलर वाला केस था, राइट? आर वर्सेस मिलर वाला केस ये बहुत मशहूर था। उधर सवाल क्या था? एग्जेक्टिव अपना प्रेरोगेटिव यूज करते हुए
पार्लियामेंट को प्रोरोग कर रहा था कई हफ्तों के लिए, राइट, प्योरली सेल्फ सर्विंग रीजंस के लिए। अब जेन्युइन असूल ये है, सिमिलर टू ये, कि प्रेरोगेटिव पावर को चैलेंज नहीं आप करते कोर्ट में, कोर्ट्स उसे क्वेश्चन नहीं करती। मगर मिलर में कोर्ट्स ने उस डिसीजन को सेट असाइड किया क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई यू आर ट्राइंग टू रन अ फ्रॉड ऑन द पीपल, कि पार्लियामेंट का जो मकसद है अकाउंटेबिलिटी का, उसे आप खत्म करने की कोशिश कर रहे हो एक इतने अहम। और जब फैसला दिया, ये नहीं हुआ कि पूरा पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई, राइट। सो एक पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिमेंट बनता है फिर। सॉल्यूशंस अक्सर इन चीजों के पॉलिटिकल ही होते हैं, अवाम के पास ही होते हैं। लेंट हैंड जो जज थे अमेरिका में, वो कहते थे कि लिबर्टी लाइज इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल। जब वहां मर जाता है तो कोई कोर्ट, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बचा सकती। मगर जब तक वहां है तो आई आई थिंक रेजिस्टेंस होगी इन आइडियाज के अराउंड। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि पब्लिक सेंटिमेंट किस तरफ जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए अभी तक चीजें चल रही हैं। एंड अगेन, आपने कहा कि लोग कैसे रिएक्ट करें, विल ऑफ द पीपल है, ये लोग भी अभी ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि जी विल ऑफ द पीपल है। प्रोटेस्ट आप करने नहीं दे रहे, फ्री स्पीच को आपने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है, राइट, क्यों है ट्विटर बैन, राइट। तो आप विल ऑफ द पीपल की किस तरह बात करते हैं जब पीपल को तो आप बोलने ही नहीं दे रहे, राइट। सो एक सीरियस लेजिटिमेसी इशू है। नो कोर्ट, कोर्ट्स आर पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इट विल नॉट इग्नोर इट जब ये सवाल आएगा। सो आप खुद एक रेसिपी फॉर डिजास्टर अपने लिए बना रहे हैं। आई हैव गॉन ऑन टू लॉन्ग, बट इंडिया में भी ये हुआ था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी के तहत उसने कोर्ट की पावर्स को स्ट्रिप अवे करने की कोशिश की, एंड द सुप्रीम कोर्ट रिएक्टेड और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बने। बांग्लादेश में जुडिशियल रिव्यू जुरिस्डिक्शन लेने की कोशिश की थी, बांग्लादेश कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अडॉप्ट कर ली, राइट। सो जब आप पुश करते हो एक इदारे को, उसकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर देते हो, तो इदारे रिएक्ट करते हैं। ठीक है मोइज, आपके इस बारे में क्या ख्याल है? डू यू सी कि हसन की बात लॉयर्स मूवमेंट की तरफ लेके जा रही है हमें? आपको लगता है कि वहां से भी रिएक्शन आएगा इन केस दीज डिफरेंट ड्राफ्ट्स आर एबल टू कम थ्रू एंड दे आर एबल टू कम अप विद दीज अमेंडमेंट्स? आप इसको कैसे देखते हैं कि उस वक्त फिर क्या होगा? देखिए, ये आई थिंक वी आर फास्टली मूविंग टुवर्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। क्योंकि जिस तरह से हसन ने कहा कि अगर ये अमेंडमेंट पास हो जाती है इन एनी शेप और फॉर्म, एंड इफ देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, देन वेयर डू यू चैलेंज दिस अमेंडमेंट? Do you then challenge this amendment in the Supreme Court, which will then be stripped of its constitutional jurisdiction, or do you then challenge these amendments before the federal court? और अगर हम इन अमेंडमेंट्स की टेक्स्ट के ऊपर बात कर सके, हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया इस बात से कि पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है। लेकिन पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी अगर है भी, तो वो तो आपने सरेंडर कर दी ये कह के कि जो भी कानून होगा सर्विस चीफ्स के हवाले से, उसको हम आइंदा अमेंड नहीं करेंगे थ्रू अ सिंपल मेजोरिटी। उसको हम तभी अमेंड कर सकेंगे अगर हमारे पास इतनी मेजोरिटी हुई कि हम आइन को अमेंड करेंगे। हम बात करते हैं विल ऑफ द पीपल की। क्या लोगों की वाकई ये विल होगी कि कोई ऐसी डिसीजन, कोई ऐसी पॉलिसी जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे फ्रेम की गई हो, उस पॉलिसी को ना क्वेश्चन किया जा सके? हम देखते हैं कि क्या लोगों की ये विल होगी कि जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उसको इस हद तक सर्व कर दिया जाए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हो जिसके जजेस अपॉइंट करे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, बाद में वही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस कंप्राइज करें हमारे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, यानी फिर वो लोग बाकी सारे पाकिस्तान के जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, वो लोग बैठे हों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ऊपर भी, यानी कि वो लोग फिर ये भी डिसाइड कर रहे हों कि किस जज को ऑफिस में रहना चाहिए, किसको नहीं रहना चाहिए। और अगर इन तमाम इस सारी कदगन के बाद कोई जज अपनी इंडिपेंडेंस का इजहार फिर भी करे, तो उसको आप विदाउट हिज कंसेंट किसी भी मुल्क की और कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। सो दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर परहैप्स द ग्रेवेस्ट अटैक एंड असॉल्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सिंस द इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि जो एक और इशू है, हम बार बार लेजिटिमेसी की बात भी करते हैं। आज गवर्नमेंट के नुमाइंदे बड़ी कॉन्फिडेंटली ये कहते हैं कि हमारे पास मेजोरिटी होगी, वी विल हैव द नंबर्स, एज Rida also said that for them it's number game.
And at the same time, we see the Supreme Court, the re-christened committee of 3 judges of the Supreme Court, fixing the review petitions in the 63A case. तो एक परसेप्शन ये बनता है कि गवर्नमेंट को जरूरत है नंबर्स के, और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे केस के रिव्यू पिटिशन सुनने को तैयार हो गई, व्हिच विल डिलीवर द नंबर्स टू द गवर्नमेंट. ये परसेप्शन चाहे सही हो या गलत हो, बट ये परसेप्शन कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की बी टीम के तौर पे एक्ट कर रही है, दैट परसेप्शन इज कैटास्ट्रोफिक फॉर द सुप्रीम कोर्ट. और हम ये भी देखते हैं कि एक ऐसा कानून जब आएगा जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जाके जजेस रिटायरमेंट के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर एम्प्लॉय हो सकते हैं, दिस इज एसेंशियली एन इंड्यूसमेंट to the Supreme Court judges that if you toe our line, if you give decisions that are acceptable to us, then we have created this other institution which will ensure that you are employed over there. और हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर भी पार्लियामेंट में बात होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, लेकिन ये डायरेक्टली इंड्यूसमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि आप हमारे हक में फैसले करें, अगर हमारे हक के फैसले आपने नहीं किए तो हम आपकी जुरिस्डिक्शन भी स्ट्रिप करेंगे, आपके इख्तियारात के ऊपर भी पाबंदी लगाएंगे. और जो हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस के हवाले से बात की गई पहले कि नाउ द चीफ जस्टिस विल नॉट बी द सीनियर मोस्ट जज, द चीफ जस्टिस विल बी डिसाइडेड बाय कमिटी ऑफ द नेशनल असेंबली. That committee also has proportionate representation of the government. यानी गवर्नमेंट की मेजॉरिटी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी है, गवर्नमेंट की मेजॉरिटी उस नेशनल असेंबली की कमेटी के ऊपर भी है. सो आई थिंक ये अगर इस तरह का निज़ाम आया और इस तरह की कोई अमेंडमेंट आई, सो दैट विल बी कैटास्ट्रोफिक. एंड हम इस बात को भी देखते हैं कि इलेक्शंस जो हमारे हुए फरवरी के, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवालिया निशान है. लोगों के पास एक कानूनी रास्ता होता है कि जाके इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में पिटिशंस फाइल करें. दोज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैव बीन स्टॉप्ड फ्रॉम वर्किंग एज वेल. हमारे मुल्क में आज सोशल मीडिया इज बैंड, आज आपको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, आज आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन व्हिच इज सिमरिंग अंडर द सरफेस, एंड जनरली देयर कैन बी एनी इंसिडेंट व्हिच फ्लैग्रेट्स दोस टेंशंस. हमने मुशर्रफ के दौर के अंदर भी देखा कि उस वक्त तक जब लॉयर्स मूवमेंट आई थी तो देयर हैड बीन डिक्टेटरशिप फॉर 8 or 9 years, एंड यूजुअली देयर इज ओनली वन इंसिडेंट दैट स्पार्क्स दीस प्रोटेस्ट्स. और बिल्कुल जिस तरह से एक पुशबैक आया है जुडिशरी की जानिब से, वकला की जानिब से, सिविल सोसाइटी की जानिब से, सो यस दिस अमेंडमेंट विल नॉट ओनली टेस्ट द सुप्रीम कोर्ट बट दिस विल आल्सो टेस्ट द पब्लिक. क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर हमने देखा कि बहुत से ऐसे मौके हुए कि जहां पर बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम्स को के ऊपर इंक्रोचमेंट हुई, लेकिन लोगों ने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया. सो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जमहूरियत का हर तरह से टेस्ट होगा, हमारे जमहूरी इदारों का टेस्ट भी होगा, लेकिन लोगों का टेस्ट भी ये होगा. बिकॉज अल्टीमेटली नो कॉन्स्टिट्यूशन कैन सर्वाइव अनलेस देयर इज अ पॉलिटी, देयर इज अ पब्लिक दैट वांट्स टू प्रिजर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशन. That's true. मैं रिदा सिर्फ मैं एक रिदा आखिर में अगर एक बात सिर्फ कह सकूं Sure. कि ये बहुत बात होती है कि जी जजेस के पास इख्तियार क्यों है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार होना चाहिए. ये अगर हम देखते हैं the parliament abdicating and the parliament giving away its powers. हमने देखा कि अब नेशनल सिक्योरिटी की आ जाती है. So this will also raise a number of question marks over the conscience of parliamentarians who will vote for any amendment that is presented to them. Parliamentarians also have the independent obligation to vote in terms of कौन सा सवाल निशान होगा कि क्या आप ऐसी आईन तरमीम को वोट देंगे कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बुनियादी हुकूक को सर्व करे. बिल्कुल ठीक हो गया. रिदा, दैट ब्रिंग्स मी टू द फाइनल क्वेश्चन टू यू. इसी हवाले से एक तो जिसका मोइज भी कह रहा था कि इट सीम्स लाइक इट्स पॉसिबल फॉर वन जज to bring the Supreme Court and the entire system of judiciary to a point where इस तरह की सिचुएशन, यानी ये भी क्रिटिसिज्म आता है कि जजेस खुद ही they brought themselves down to this point where the parliament is now having to tame them, और उनके इस तरह के फैसले रहे हैं और इस तरह की उनकी रेजिस्टेंस रही है जिसकी वजह से खुद ही वो अब इस स्टेज पे ले आए अपने इदारे को, जिसकी वजह से पब्लिक में भी सेंटिमेंट उनके खिलाफ आ गया है, और या अगर पार्लियामेंट पुश बैक कर रही है तो वो भी आ गया है. तो आप किस तरह से देख रही हैं एक दो जजेस के रवैयों की वजह से, या जिस तरह मास्टर ऑफ रोल्स वाला सिस्टम भी वापस आ गया है,
all of this, are judges to be blamed for whatever is happening to them through these constitutional amendments? And do you think we have enough constraints within the existing system to stop this amendment, which is against the fundamental structure, from coming about? मैं इस बात में बहुत बिलीव करती हूँ कि वी कैन नॉट बी हेल्ड हॉस्टेज टू आर पास्ट। अगर हमारी अदलिया ने माजी में गलतियाँ की हैं, जो ज़रूर की हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आज जो पार्लियामान है या जो हुकूमत है वो जो मर्ज़ी करें। आज जो इस हुकूमत को जिस फैसले से बुनियादी तौर पे इख्तलाफ है वो रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला है, और वो मेरी नज़र में बिल्कुल आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक फ़ैसला है। और जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो अक्सरियत है सुप्रीम कोर्ट की, बाय एंड लार्ज रिसेंटली जो उनके फैसले हैं वो आज़ादाना फैसले हैं, आइन के मुताबिक फैसले हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही, स्पेशली जो हमारे फुल कोर्ट बैठे हैं रिसेंटली, कि किस बात से जो है हुकूमत को इतना इख्तलाफ है। और मैं जो बात करना चाहूँगी एट द एंड, जो दो चीज़ें मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी हैं, कि ये जो हुकूमत जस्टिफिकेशंस दे रही है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि पेंडेंसी कम होगी, ये उनका कि खत्म करेंगे पेंडेंसी। आप तब खत्म करेंगे जब आप ये रिफॉर्म्स लाएंगे अपने जस्टिस सिस्टम में, कि केसेस इतने इंस्टीट्यूट क्यों होते हैं, कॉस्ट क्यों नहीं लगती, ऑल्टरनेटिव आप इस तरह डील करेंगे। इस तरह आप पेंडेंसी के साथ डील नहीं करेंगे कि आप एक सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के तो आप कह रहे हैं कि हमारी जस्टिफिकेशन ये है कि हम पेंडेंसी जो है उसको खत्म करेंगे। तो जिस तरह की जस्टिफिकेशंस भी आ रही हैं वो भी बिल्कुल एक मिसलीडिंग और गलत जस्टिफिकेशंस आ रही हैं, ये कि हम क्यों ये रिफॉर्म्स ला रहे हैं। और जो अगेन हुकूमत की तरफ से अप्रोच रहा है वो एक सीक्रेसी का अप्रोच है, और वो गलत भी बातें कर रहे हैं। जो पहली जुडिशल कमीशन की मीटिंग हुई जून में, उसको उन्होंने अडजर्न कर दिया क्योंकि उस वक्त हुकूमत ने कहा कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं। फिर आवाज़ उठी कि जस्टिस मंसूर अली शाह का आप क्यों नहीं नोटिफिकेशन इशू कर रहे। तो उस वक्त लॉ मिनिस्टर का, मुझे याद, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ये सारी गलत बातें हो रही हैं कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल रही है और इस तरह का तो कोई प्रपोजल नहीं है, और क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं। जस्टिस फाइज ईसा ने तो रिफ्यूज कर दिया कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। तो उन्होंने वो सारी जो चीज़ें हैं वो जो उस वक्त बात हो रही थी उसको कहा कि ये सब गलत बात हो रही है। फिर एकदम से ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिस खत्म करें, तो बिल्कुल भी मेरी नज़र में जो ब्लेम, बट मुझे लगता है कि अदलिया में खुद एक तकसीम है, और वो तकसीम अदलिया में पिछले साल भी थी और आज भी अदलिया में तकसीम है, और उस तकसीम को हुकूमत जो है वो एक्सप्लॉइट करती है। पिछले साल जब 90 दिन की इंतखाबात की बात थी तो अदलिया में तकसीम थी कि जंग को बुनियाद बना के 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए। अभी भी अदालत में सुप्रीम है, आपकी अदालत में तकसीम है, आप खुद एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो नहीं शो करेंगे जब आपके अपने ही इदारे पे अटैक हो रहा है। और एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी, जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस हैं, ये उनका इदारा है। अगर सुप्रीम ऑल्सो ही इज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जजेस जो है ये वो भी नहीं कि अपने लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करते हैं और क्रेडिबिलिटी को अंडरमाइन करते हैं। तो सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं कि जजेस, इतना बड़ा अटैक हो रहा है उनके अपने इंस्टीट्यूशन पे, उनके फैसलों पे हुए हैं, मगर वो ये नहीं देख रहे कि जो हमारी इंस्टीट्यूशन की लेजिटिमेसी है उसको इस वक्त कितना चैलेंज किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रही है, और आप सबने बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट किया है इसकी प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दीज रिफॉर्म्स के हवाले से, एंड द काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दैट आर बीइंग रेज्ड इन फेवर ऑफ
concepts like parliamentary sovereignty which don't apply to this jurisdiction, and किस तरह कुछ misleading एक narrative भी इसके around build किया जा रहा है. And also you guys have highlighted in particular कि ऐसी कोई रीजंस मौजूद नहीं है या कोई वजूहात हमें नहीं दी गई कि जिसकी वजह से ये वाली जो तरमीम है उसको लाने की ज़रूरत पेश आई, इतनी रेडिकल किस्म की. मतलब बात 63A वाली जजमेंट को रिवर्स करने की हद तक होती या कुछ और जस्टिफाइड जो उसके एस्पेक्ट्स हैं वो होते, जैसे उसमें वन सेविंग फेस is that right to clean environment or I mean, so I mean they could have but there seems no pragmatic reason for bringing up such a radical change in the way this country, you know, the court systems are structured and everything. कोई उसकी proper basis या consensus नहीं build किया गया उसके ऊपर. So I think जो तमाम आप लोगों ने points raise किए हैं इस amendment के हवाले से, जो आपकी reservations और concerns हैं वो अपनी जगह पे, but ज़्यादा particular I think the concept itself of parliamentary sovereignty जो हमने जिस तरीके से discuss किया वो बहुत ज़रूरी था मेरी नज़र में, क्योंकि नहीं है लोगों में इतनी ज्यादा कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज लीगल कॉन्सेप्ट्स, जूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स. एंड आई फील कि हमें एटलीस्ट इस सारे इशू के थ्रू एटलीस्ट ये मौका मिला कि हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर सकें और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचा सकें, which I hope you know will make a difference or some contribution in shaping their understanding of these critical legal concepts. And I would definitely insist people to read up more on these concepts from the resources that are available online, and then make an informed decision and opinion about what these concepts are, whether they are applicable in our context or not. आप ना हसन की बात माने, ना मोइस की बात माने, ना रिदा की बात सुने, मेरी भी मत सुने. But if this conversation can simply inspire, encourage you to pick up a book or some sort of an authentic source and, you know, guide you towards or inspire you enough to find out for yourself, I think that would be the biggest contribution of this particular conversation. On that note, I want to thank all three of you for taking the time out on your Saturday evening and, you know, explaining these very difficult concepts in terms which are hopefully comprehensive to the lawyers, but also any lay people who happen to watch our program. Thank you so much, Hassan, Moiz, and Rida. And we Thank you will for having continue us, these series, Nida. and hopefully we can continue to talk about these difficult conversations, which are, I think, imperative for the times that we live in. Thank you so much.